Okay, now, now, quiet please. Now, in the previous class, we were discussing here the immunology, and I told you that immunity is basically two types. One is the innate immunity, inborn, non-specific. And that inborn or the innate immunity is a part of your body, means it is skin, it's mucosa, glands, secretions like hydrochloric acid, even your blood. Inside the blood are lying the WBCs, granulocytes you saw there, agranulocytes like lymphocytes and monocytes, some resident cells also like the mast cells, macrophages, and in the plasma there are a lot of proteins also, complement system, etc. These are all inborn immunity. You see that this is immunity that is part of your body, and you see it's kind of a tissue also. That means it is the integral part of your body. But there is one more immunity also that is called the adaptive immunity that you have to acquire from outside, and that is called acquired immunity. And we told you that acquired immunity can be either you can say artificial or can be natural. Natural means if you will get a simple classification or say simple explanation of the natural, means there is no intervening health provider between you and the immunity. That means you are getting it through natural sources, natural source. And artificial means some health provider is actually providing you that immunity. So as far the natural is concerned or the artificial is concerned, both of them can either be active or passive. And if you will get the simplest of explanations about the active, means there is some stimulus or a triggering factor through which your antibodies are being formed and created by your body actively. Means your immune system has been activated to create the antibodies or antitoxins. This is active. But if you will get the preformed antibodies, preformed antitoxin from outside, through injection or something, or you see, not through injection. If injection is there, we call it artificial. If without injection you will get it, this is called natural. But one thing is quite clear, that it will be preformed, ready-made antibodies you will get from outside here. This is passive. तो आपको सिर्फ ये जहन में बनाना चाहिए, तो एग्जांपल्स खुल के सामने आ जाएंगे आपके कि ये नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, एक्टिव है, नेचुरल में एक्टिव है या आर्टिफिशियल है, सॉरी पैसिव है। नेचुरल में एक्टिव है माने क्या क्या एग्जांपल होगा? नेचुरली मिली है आपको, डॉक्टर नहीं है बीच में, और एक्टिव है माने एंटीबॉडीज किसी वजह से बनी है आपके बॉडी में, तो एग्जांपल क्या होगा? ये कब होता है ऐसा? हाँ, वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन में नेचुरली आ जाता है, आप बैठे हुए होते हैं, सुबह को टीका लग जाता है आपका खुद ही, नेचुरल, डॉक्टर बीच में आया ही नहीं। वैक्सीनेट आफ्टर डिजीज, कोई डिजीज हो जाए आपको, यू विल बी इम्यूनाइज्ड, दिस इज नेचुरल, एक्टिव। आपको नहीं थे एंटीबॉडीज, डिजीज होने की वजह से एंटीबॉडीज क्रिएट हो गई, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, ये एक्टिव है। तो पैसिव क्या होता है? बनी बनाई एंटीबॉडीज आपको मिल जाएं, कैसे मिलेंगी? नेचुरल में, नेचुरल पैसिव। हाँ, मदर में सिर्फ ये एडवांटेज बच्चे को है, जब वो बच्चा मदर के यूट्रस में है तब थ्रू प्लेसेंटा, और वे बाहर आ गया तो थ्रू मिल्क, यही दो चीजें हो सकती हैं, समझ गए? तो ये पैसिव की एडवांटेज सिर्फ बच्चे को ही है। और बाकी जब आप आ जाएंगे आर्टिफिशियल के पास, तो वहां फिर एक्टिव, फिर पैसिव, फिर एक्टिव। एक्टिव क्या? सीधा सीधा यही जो आप देख रहे हो, इम्यूनाइजेशन, इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं, जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये क्या है? जी जी, नहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या? दैट विल बी आर्टिफिशियल, बट आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव मीन्स एंटीबॉडीज हैव बीन क्रिएटेड। अब की बार डिजीज से नहीं, अब की बार बाहर से आपको वो बैक्टीरिया और वायरसेस दिए जा रहे हैं, तो यू विल कॉल इट। जी जी,
नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। So, artificial active means antigen have been introduced into your body with the intervention of the health provider. क्या दे रहा है आपको? या वायरसेस या बैक्टीरिया उसके एंटीजेंस आपको डाल रहा है, तो आपको एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी अंदर, इम्यून सिस्टम आपके एंटीबॉडीज क्रिएट करना शुरू कर देगा। इसी को कहते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में जो आप देख रहे हो क्या होता है, ये एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये। तो क्या आर्टिफिशियल पैसिव भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बने बनाए एंटीबॉडीज हमें डाल दिए जाते हैं, और बने बनाए एंटीबॉडीज तब डाल दिए जाते हैं जब उसी वक्त हमें खतरा होता है, और ये जो एक्टिव होती है वो हमें खतरा नहीं होता, हमें आगे चल के इम्यूनाइज करना होता है फॉर द होल ऑफ योर लाइफ, या कम से कम होने से तो 3-4 साल के लिए हमें इम्यूनिटी मिल जाए। ये वैक्सीनेशन होती है। इसके अंदर वैक्सीनेशन में इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड होगी, वो स्ट्रांगर भी होगी और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी होगी। बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती हैं, आपको पता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है आपको। कोरोना में आपको लाइफ लॉन्ग ना सही, उसके बारे में डेटा नहीं है, लेकिन यह है कि उसके बारे में आपको सालों से आप इम्यूनाइज हो गए, तो उसके अंदर इम्यूनिटी हो गई है। ट्यूबरकुलोसिस की, जितने भी ये टीके आप लगवाते हैं, ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। लेकिन पैसे भी हो सकती है, जैसे अभी कोई चोट लगी, स्किन ब्रेक हो गई, मट्टी लग गई, टेटनस के चांसेस हैं। टेटनस के चांसेस कब हैं? अभी 1-2 दिन में हैं। अगर खुदा न खासा यहाँ टेटनस के बैक्टीरिया अंदर एंटर हुए और टॉक्सिन्स अंदर एंटर हुई, तो अभी आपको चाहिए फॉरेन प्रोटेक्शन। तो फॉरेन प्रोटेक्शन में क्या आप एक्टिव इम्यूनिटी देंगे कि बने बनाए एंटीबॉडीज डालेंगे? बने बनाए एंटीबॉडीज डालेंगे। तो इसको हम वैक्सीनेशन नहीं कहते, ये हम एंटी सीरम लगा देते हैं, हम खुद कहते हैं एंटी टेटनस सीरम, ATS जिसको हम बोलते हैं। ये क्या है? ये है आर्टिफिशियल, लेकिन कैसी है? पैसिव है। तो इनके एग्जाम्पल्स मैंने उस दिन आपको कराए, और ये इसका ओवरव्यू था। अब हम यहाँ पर एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं, इसी में इम्यूनोलॉजी में ही, वो है ये भी इम्यूनिटी है, ये भी इम्यूनिटी ही है, लेकिन ये इम्यूनिटी इम्पेयर्ड है, डिरेंज्ड है, एग्जिजरेटेड है, जरूरत से ज्यादा। आपको पता है हर चीज जरूरत से ज्यादा खराब होती है, ये जरूरत से ज्यादा है, ये एग्जिजरेटेड रिस्पॉन्स है बॉडी का, इम्पेयर्ड और एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का अगेंस्ट सर्टेन एंटीजेंस, अगेंस्ट सर्टेन ट्रिगरिंग फैक्टर्स, और इतना शदीद रिस्पॉन्स है कि वो आपको डैमेज कर रहा है। इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। वो कहते हैं ना कि भाई कोई नुकसान है, चले जितना नुकसान है उतना महसूस करो, थोड़ा सा नुकसान है चीखें और धाड़े मारना शुरू करो, ये हाइपर सेंसिटिविटी है। इस किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी है। 2-4 अगर डस्ट के पार्टिकल्स अंदर दाखिल हो गए तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा। ये नहीं कि उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स दे कि मेरे ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो जाए, सांस ही अंदर न जाए, और ब्लड प्रेशर आपका फॉल कर जाए, आप धड़ाम से गिर जाएं, मुंह आपका सूज जाए, और इस किस्म की ये रिस्पॉन्स कोई एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स तो नहीं है। चंद ड्रॉपलेट्स अंदर गए हैं और मेरी ये हालत हो गई है। मच्छर ने मुझे इतना सा काटा है, भाई थोड़ा सा इधर रेड हो जाए, चलो इतना तो समझ में आता है। मच्छर यहाँ से थोड़ा सा काट ले और मेरा मुंह जो है वो सूज जाए ऐसे बलून जैसा, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कोई एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है क्या? ये एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसी चीज बॉडी कहेगी मैंने तो आपको डिफेंड किया है, मैंने तो आपको बचाने की कोशिश की, ये बचाना है क्या? इसकी मैंने मिसाल आपको दी थी ना, आपके घर के ऊपर बिल्ली छलांग लगा दे और आपका चौकीदार जो उस पर फायरिंग कर दे, ये कोई
अक्लमंदी वाली बात है। इस किस्म की अक्लमंदी यहां हो जाती है कभी कभी बॉडी में, और अगर बॉडी में हो गई अगर, तो फिर हम इसको हम इम्यूनिटी नहीं कहेंगे, फिर अब इसका नाम डालेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। ये हाइपर सेंसिटिविटी है। जैसे बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बैसिलस जो है वो बॉडी के अंदर चला गया, एयर के अंदर लंग में जाके सेटल हो गया। यकीन माने ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इतना डेंजरस नहीं है, इतना शायद डेंजरस ना हो। बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करेगी, अचानक उस पर झपटेगी, मैक्रोफेजेस को दबोचेंगे, मैक्रोफेजेस उनको दबोच के वहां से उनको कॉल करेंगे लिम्फोसाइट्स को, लिम्फोसाइट्स उसको सराउंड करेंगे, एपिथेलियल, ऐसा वहां पर एक सीन क्रिएट हो जाएगा कि माइकोबैक्टीरियम तो बेचारा उधर ही पड़ा होगा, ऑल अराउंड तुम्हारे सेल से ऐसा डैमेज कर देंगे, डैमेज एक्चुअली माइकोबैक्टीरियम को भी नहीं कर सकेंगे, माहौल ऐसा क्रिएट कर देंगे कि कोई खुदा न खासा कोई बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। जैसे उमूमन होता है ना, पुलिस वालों को जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर कोई ऐसा गरीब सा पकड़ लेते हैं, और पकड़ के 50-60 गाड़ियाँ ये वो, आप बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया है, और अंदर जाके सेंटर में देखेंगे तो बेचारा गरीब सा बैठा हुआ होता है, और पुलिस वाले फिर कमांडो को बुला, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिसे उनका मकसद ये होता है कि सीन क्रिएट करें कि हाउ मच विजिलेंट यू सी दिस, हाउ मच विजिलेंट वी आर, ये देखें कैसे विजिलेंट है। 60 गाड़ियां गरीब को पकड़ने के लिए, और जिनको पकड़ना है उनको कोई हाथ ही नहीं डालता। शायद उनके लिए 60 गाड़ियां भी काफ़ी नहीं है, शायद वो समझ लाते हैं कि 60 गाड़ियां भी काफ़ी नहीं है उनके लिए 260 होनी चाहिए। तो यहाँ पर इतनी नफरी है नहीं, तो इस किस्म का सीन क्रिएट करते थे। उस सीन के अंदर फिर जिस जगह पर ये सीन क्रिएट होता है वो ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो डैमेज माइकोबैक्टीरियम कर रहा है कि वो रिस्पांस कर रहा है, समझ ले। अगर ना ये रिस्पांस थोड़ा तमीज़ में होता ना तो ये टीबी आज डिजीज ही ना होती शायद, क्योंकि टीबी का बैसिलस बेचारा इतना सा, वो क्या कर रहा था, अगर उसको छोड़ देते ना तो वो वहीं खड़ा रहता और शायद ख़त्म हो जाता और शायद कुछ भी ना करता आपको। लेकिन ऐसा रिस्पांस दिखाया है कि उस जगह का बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी जिस मोहल्ले में ये 60 गाड़ियाँ आई हैं, सुबह को पता चला कि उस मोहल्ले की 70 बिल्डिंगें गिरी पड़ी हैं, इतनी फायरिंग इतनी शेलिंग हुई है, वो गिरी पड़ी है। किसको पकड़ना था, एक मुजरिम अंदर छुपा था, वो पता चला कि वो बेचारा छोटा सा कोई मामूली सा कोई चोर था वो भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई डीसी था वो, तो वो वहाँ पर चोर था, लेकिन इतना तो नहीं था कि इस तरीके से आप बम्बार्डमेंट और शेलिंग करके आप पूरा मोहल्ला ही गिरा दो। इस किस्म के रिस्पॉन्सेज यहाँ पर होते हैं, पर इस किस्म के रिस्पॉन्स को तुम इम्यूनिटी तो नहीं कहोगे। इम्यूनिटी कहोगे कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है यार, ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास, ये तो माइकोबैक्टीरियम को तबाह कर दिया, ये तुम्हें तबाह कर दिया, माइकोबैक्टीरियम तो चलो गया, तुम्हारा आधा लंग खत्म हो गया। इस किस्म की चीज़ को फिर तो हम इम्यूनिटी नहीं कह सकते, इसको कहोगे क्या, हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी भी अच्छी चीज़ नहीं है कि मिडिल पाथ जो है, मॉडरेट पाथ होता है, इज द बेस्ट ऑफ द ऑल पाथ्स, बीच का रास्ता। इबादत भी करो तो मॉडरेट, ज़्यादा हद से ज़्यादा नहीं, मॉडरेट इबादत, रोज़ करो, थोड़ी करो, रोज़ करो। तो यहाँ पर इस किस्म की चीज़ यहाँ पर है, ये इस हाइपर सेंसिटिविटी को लेके हम आ रहे हैं, और ये एक जैसी नहीं होती है, इसके तरीके मुख्तलिफ हैं, इसकी वारदात के तरीके मुख्तलिफ है, जैसे तरीका है वारदात अलग अलग है, उसी हिसाब से इस हाइपर सेंसिटिविटी की 4 क्लासेस हैं। इसको हम कहते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इनके एग्जाम्पल्स हैं, हर एक के एग्जाम्पल्स हैं, हर एक के एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं है कि मैं कोई ऐसे मरीज से ले आऊँगा एग्जाम्पल, बड़े कॉमन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने ट्रेस किए हैं, बड़े कॉमन, रोज़ आप देखते हैं उनको, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये हो क्या रहा है और विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज इट। तो जहाँ पर इसको ये क्या रहे हैं, और ये हाइपर सेंसिटिविटी की ओवरव्यू के बाद आप देखें इसको कि ये क्या है, दिस इज ए एडवर्स रिएक्शंस हैं, ये हैज एग्जिजरेटेड है, काज्ड बाय इम्यून, वो हैं इम्यून मैकेनिज्म्स, लेकिन ये एडवर्स रिएक्शन है, आपके लिए ये खराब है, उल्टा है, एग्जिजरेटेड है, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और इसको हमने 4 टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया है। 3 टाइप्स तो वो हैं जिनमें उम्मूमन एंटीबॉडीज बनती हैं। इम्यूनिटी में क्या बनती हैं ज़्यादातर, एंटीबॉडीज, दीज आर एंटीबॉडीज।
वो एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज आपके लिए खराब हैं, खतरनाक है, क्योंकि वो उनका एडवर्स रिएक्शन है, गलत तरीके से बनती है। 3 ऐसी हैं, 1 2 3। फोर्थ जो है उसमें एंटीबॉडीज नहीं बनती, उसके अंदर आपके जो दूसरे सेल्स होते हैं, कौन से? लिम्फोसाइट्स। वो लिम्फोसाइट्स अटैक करते हैं आपके उस बैक्टीरिया पर जो अंदर गया है, तो उस टिश्यू में दबा देते हैं। तो इस किस्म की इम्यूनिटी क्या ब्लड में होती है या टिश्यू में होती है? तो जो चौथी टाइप की इम्यूनिटी है, दैट हैपेंस इन टिश्यू, वो टिश्यू इम्यूनिटी है, वो चौथी टाइप की इम्यूनिटी है। तो पहली 3 और चौथी में क्या फर्क है? फर्स्ट 3 where there are antibody formation and there is the fourth one where there is immunity in the tissues। तो टिश्यू में एंटीबॉडी तो नहीं जाती ना, टिश्यू में कौन झपटता है जाके? मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स। कौन से वाले? टी लिम्फोसाइट्स। बी किधर होते हैं? जहां एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज कौन बनाता है? लिम्फोसाइट्स। कौन से लिम्फोसाइट्स? बी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स क्या बन जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में, और वहां से बन जाते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इससे बनती हैं जब जरूरत पड़ती है। तो यहां पर इन दोनों में ये फर्क है, और इसको लेके हम आ रहे हैं इस पे, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पे। इसको हम इमीडिएट रिएक्शन भी कहते हैं, एनाफाइलेक्सिस भी, और इत्तेफाक से इसको एलर्जी भी कहते हैं। ये एलर्जी होती है ना आपको, क्या ये देर से होती है कि फौरी होती है? फौरी होती है। मच्छर ने काट दिया, इधर से आया ना, मुंह सूजा हुआ है, फौरी तौर पे। ये क्या है? ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 है। इंजेक्शन डाली, रिएक्शन हो गया, कहते हैं ना अब रिएक्शन हो गया इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया, और आधी इंजेक्शन अंदर है, पेशेंट नीचे ग्राउंड पे पड़ा है। और अगर आपने फौरी तौर पे रिससिटेट नहीं किया, इमरजेंसी किट नहीं है आपके पास, तो पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा। आधी इंजेक्शन अंदर। पेनिसिलिन खास तौर पे आईवी देते हैं ना जब, या इंट्रामस्कुलर ही देते हैं पेनिसिलिन, रिएक्शन हो जाता है। और रिएक्शन जिसको हम कहते हैं ना गलत इंजेक्शन लगाने से, बोला था ना मैंने लास्ट टाइम, बताया भी था, ये गलत इंजेक्शन लगा। ये इंजेक्शन गलत नहीं होती है, ये एक्चुअली पेशेंट गलत होता है। वो पेशेंट गलत, मकसद कहने का वो पेशेंट को रिएक्शन है। आपसे गलती ये हो गई है कि आपने टेस्ट डोज नहीं दिया। आप सबकुटेनियसली 2 ड्रॉप डाल के उसको 5 मिनट बिठा देते हैं ना, यार रुका होता है और यहाँ निशान बन जाता है। इसका मकसद है कि ये इंजेक्शन रिएक्शन करेगी। 2-4 ड्रॉप डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंडर द स्किन वहाँ निशान आ जाएगा, निशान आ जाएगा। फिर आप हमेशा डॉक्टर देखें ना, डॉक्टर तो लिख के चले जाते हैं, वो ऑर्डर दे जाते हैं, भाई ये आप इसको क्लेफ्रॉन लगा दें, नीचे लिख देते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए नीचे लिख देते हैं ATD, आफ्टर टेस्ट डोज। लेकिन जब आप इंजेक्शन यूज करें तो आफ्टर टेस्ट डोज पढ़ें उस पर, और यकीनन आप टेस्ट डोज करें उसका, हर दफ़े करें। जब भी डॉक्टर ने कमांड किया हो आप करें। तो इसका मकसद ये नहीं है कि नहीं यार मैंने 50 लोगों को लगाई है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। वो 50 को लगाई है, ये जो 91 है इसको हो जाए तो। और ऐसी आपको आदत अगर डाली हुई है तो हर महीने में एक दो पेशेंट को तो रिएक्शन हो ही जाएगा। इसलिए आप अपनी आदत डाल दें। प्रोटोकॉल यही है कि जहाँ ATD लिखा हुआ है, ख़ास तौर पे पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स, ये जो हैं 2, ये रिएक्शन कराती हैं। उन रिएक्शन की वजह से फिर पेशेंट के अंदर वो पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन होता है। होता क्या है इसको पहले देखें आप, इसमें मसला क्या है। अब देखें इनके क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स ये होते हैं कि आपके बॉडी में कोई एंटीजन गया होगा पहले, हमें नहीं पता कि अननोन एंटीजन कोई बॉडी में गया होगा शुरू में, फर्स्ट एक्सपोजर जो हुआ है। उस एंटीजन के अगेंस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उस वक्त नहीं होगा पहली दफा कोई एंटीजन। वो एंटीजन जब अंदर गया है और वो एंटीजन डेंजरस है आपके बॉडी के लिए, इस वक्त डेंजरस है, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। क्या होगा अंदर? एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी। एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज जो है वो कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? वो IgE एंटीबॉडीज होंगी अगर क्रिएट हो गई तो। चलो हो गई भाई, क्या नुकसान है? अभी तो कोई नुकसान नहीं है। वो IgE एंटीबॉडीज क्या करेंगे? ये IgE एंटीबॉडीज इनकी पसंदीदा जगह है जहां वो सेटल हो जाते हैं। वो सेटल हो जाते हैं आपके बेजोफिल्स पर या आपके मास्ट सेल्स पर। याद करें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब सर्कुलेटिंग WBCs होते हैं 3 टाइप्स के, जिनमें ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेजोफिल्स। बेजोफिल्स के सरफेस पर ये एंटीबॉडीज कौन सी?
IgE एंटीबॉडीज, IgE एंटीबॉडी। क्या ऐसे ही IgE के सेंसिटाइज्ड IgE, क्या किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट के इस एंटीजन के अगेंस्ट जो अभी इंटर हुई है, ये मीन से नॉन स्पेसिफिक के स्पेसिफिक है, ये दैट एंटीजन ओनली। कोई एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है सिर्फ एक एंटीबॉडी को जिसके अगेंस्ट वो बनी है। अभी कहां बैठ गई है? बेजोफिल्स पर। वो बेजोफिल्स यहां हैं, लेकिन बेजोफिल्स क्या सारे सर्कुलेट करते हैं कि कुछ लीक होकर टिश्यू में भी बैठ जाते हैं? वो टिश्यू में बैठ जाते हैं तो उनका नाम उधर होता है मास्ट सेल्स। चाहे ये हो चाहे मास्ट सेल्स हो, उनके अंदर होते हैं ग्रेन्यूल्स, और इन ग्रेन्यूल में होती है क्या क्या हिस्टामीन। और इसमें यहां लगे हैं कौन? IgE। ये IgE यहां लगा दिए हमने। चलो लगे रहे, एक्चुअली कोई मसला नहीं है, लगे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, घूमते रहे। ये इस पे लग जाएंगे यहां पर IgE। लेकिन ये IgE नहीं है सिर्फ, ये क्या है? सेंसिटाइज्ड IgE हैं, सेंसिटाइज्ड हैं, क्योंकि ये बने हैं किसके लिए? किसके अगेंस्ट बने हैं? वो स्पेसिफिक एंटीजन जो अंदर इंटर हुआ था, पता नहीं कौन सा था, हमें नहीं पता। अब ये बन गए हैं। अब जो ये बन गए हैं तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन E जो है ये सेंसिटाइज्ड है। और अब अगर नेक्स्ट एक्सपोजर हुआ, अब की बार, ये पहली दफा हो गए, पहली दफा तो ये एक्टिवेट हुए हैं ना, सिर्फ ये एक्टिवेट और स्टिमुलेट होके ये आके बैठ गए यहां पर। अगली दफा अगर एक्सपोजर ऑफ द सिमिलर एंटीजन हुआ, सेम एंटीजन दोबारा दाखिल हुई, तो फिर क्या इसको ये देखते रहेंगे या इसको पकड़ लेंगे? तो फौरन इसमें फिट आ जाएगी। क्यों फिट आ जाएगी? क्योंकि इसके लिए ही तो बनी है ये। तो ये एंटीजन, नेक्स्ट एक्सपोजर जो एंटीजन का हुआ है, ये इसके साथ आके चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, फाइटिंग होगी। ये एंटीबॉडी ऐसे नहीं है कि चिपक जाएंगे और उसको गले लगा लेंगे। इनका काम है लड़ना आपस में। एंटीबॉडी है, वो एंटीजन है, वो दुश्मन है आपका, ये आपका गार्ड है, लड़ेंगे। और जब ये लड़ेंगे तो किसके सरफेस पे लड़ेंगे? क्या ब्लड में लड़ेंगे या टिश्यू में भी हो सकता है? क्योंकि मास्ट सेल्स टिश्यू में, क्या ऐसे ही होगा या फाइटिंग होगी एट द मेम्ब्रेन ऑफ द मास्ट सेल्स? और मेम्ब्रेन डेलिकेट होती है, वो रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो गई तो क्या होगा? वो जो ग्रेन्यूल्स हैं वो फट जाएंगे और अपना हिस्टामीन बाहर फेंक देंगे। जो हिस्टामीन बाहर पहुंच जाएगा, बाहर आ जाएगा हिस्टामीन, तो लोकली अगर थोड़ा सा हुआ है अगर, तो उस जगह पर वो जो कैपिलरीज होंगी उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। और अगर उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी कैपिलरीज की, तो कैपिलरी के अंदर जो एंडोथेलियम होता है, वो एंडोथेलियम क्या करेगा? मोर लीकी हो जाएगा। लीकी हो जाएगा तो यहां से लीक होकर फ्लूइड बाहर आ जाएगा। और फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो वो चीज वैसी रहेगी कि स्वेलिंग हो जाएगी। और कैसी? एक दफा किसी ने, मच्छर ने भी काट लिया तो मुंह सूज जाएगा। ये क्या हुआ है? ये हाइपर सेंसिटिविटी हुई है। कौन सी टाइप? टाइप 1। गड़बड़ क्या हुई है? अंदर कोई सेंसिटाइज्ड IgE बैठा हुआ था, पता नहीं किस एंटीजन के अगेंस्ट हुआ था, यहां मच्छर ने काटा, उसने टॉक्सिन अंदर डाला, उसको पकड़ लिया। यही वो एंटीजन थी जिसके अगेंस्ट ये बना हुआ था। एकदम से वहां रप्चर हो जाएगा और हिस्टामीन बाहर आ जाएगी और ये सूजन हो जाएगी। एंजियोएडिमा कहते हैं इसको। ब्लड वेसल्स की वजह से डायलिटेशन और कैपिलरी की परमिबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से ये बाहर आ गया फ्लूइड और मुंह सूजी। इसको हम कहते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ये तो अभी मामला कुछ नहीं हुआ है, ये तो लोकली आपको हो गया है। ऐसी चीज अगर ये मच्छर का मैंने बताया, अगर आपने कोई इंजेक्शन डाली या कोई ऐसी चीज अंदर चली गई और ब्लड में आ गई, तो ब्लड में जब आ जाएगी तो बेजोफिल्स के ऊपर जो IgE लगे हुए हैं वो उसको पकड़ लेंगे और वहां बेजोफिल फटेंगे। और फटेंगे तो इतनी हिस्टामीन ब्लड में आएगी ह्यूज अमाउंट में, फिर सिर्फ एक जगह होगी कि पूरे बॉडी में फैल जाएगी। तो पूरे बॉडी में आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, क्योंकि वो भी स्मूथ मसल्स की बनी हुई हैं। और स्मूथ मसल्स में ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाएं या स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? डायलिटेशन। डायलिटेशन हो जाएगी तो बीपी राइज होगा कि फॉल करेगा? भाई वही 5 लीटर ब्लड है, अगर मैं उसको ऐसे डायलेट कर दूंगा तो बीपी क्या करेगा? फॉल कर जाएगा। और वेंस में बीपी फॉल करेगा तो ब्लड वापस लौटेगा कि नीचे बैठ जाएगा? तो वापस भेजेगा, नहीं तो आप ये फेंट हो जाएंगे, पता चलेगा कि आपका बीपी फॉल कर गया और फॉल करके पीछे आया ही नहीं हार्ट की तरफ, आप गिर गए यहाँ पर। नंबर 1, सिर्फ ये स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स को डायलेट ही नहीं करेगा, स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई को ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ये किसका काम है? हिस्टामीन का।
हिस्टामिन इतना शदीद तरीके से पूरे बॉडी में फैल गया है। ये वाइड स्प्रेड रिएक्शन हुआ है आपको बॉडी में, पूरा सिस्टमिक रिएक्शन। तो वो फिर ब्रोंकाई में जब पहुंचेगा तो ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं, तो वो स्मूथ मसल्स उधर डायलेट नहीं होगा, वहां का स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट होगा, और ऐसे कंस्ट्रिक्ट होगा कि शदीद डिस्निया आपको होगी, दम घुटेगा आपका, और इतना कुछ कि इवन सांस बंद हो सकती है, और वहां ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है। और फॉल करेगा अगर आप फौरी तौर पे उस पेशेंट को अगर आप ऑक्सीजनेट नहीं करते हो, ब्रोंकाई को नहीं खोलते हो मेडिसिन देके, ब्लड वेसल को नहीं कंस्ट्रिक्ट करते अगर मेडिसिन देके, तो पेशेंट विद इन 1 मिनट एक्सपायर कर जाएगा। ये क्या हुआ है? रिएक्शन, जिसको बोलते हैं ना इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया है, ये रिएक्शन होते हैं। फिर हम इसको सिंपली एंजियोएडिमा और ये नहीं कहेंगे, एलर्जी, ऐसे ऐसे ना सिंपल वर्ड नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे एनाफाइलेक्सिस। क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्सिस। और ये पेशेंट क्या है? पेशेंट बेहोश होगा, शॉक में चला गया, ऐसे शॉक को कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो ये जो एनाफाइलेक्सिस है, ये क्या है? ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, जो अगर थोड़ी सी हो तो एलर्जी, अगर ह्यूज और वाइड स्प्रेड हो जाए तो एनाफाइलेक्सिस। इसको एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। तो ये जो उमूमन देखें आप, डस्ट का कोई पार्टिकल्स वगैरह, कोई झाड़ू दे रहा है, डस्ट अंदर चली गई और आपके ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स आपके कंस्ट्रिक्ट हो गए और दम घुटने लगा, दमे का अटैक हुआ है, ये क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी। एक बंदे को हुआ, दूसरे को हुआ ही नहीं, क्योंकि एक हाइपर सेंसिटिव है, दूसरा नहीं है। कुछ लोग होते हैं, कुछ खाने खाते हैं, जैसे अंडा खा लिया और एकदम से दम घुटना शुरू हो गया, बीपी फॉल कर रहा है। ये क्या हो रहा है? जो अंडे के अंदर जो मौजूद हैं न्यूट्रिएंट्स, वो उसके लिए एंटीजन है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब में नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अंदर मौजूद हैं क्या? सेंसिटाइज्ड IgE मौजूद हैं, और IgE इसके न्यूट्रिएंट्स को पकड़ लेते हैं, वेजोफिल रप्चर हो जाते हैं, हिस्टामिन बाहर आ जाती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेटेशन, उधर बीपी फॉल करेगा, इधर डिस्निया शुरू हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? ये अटैक हो रहा है, ये दमे का अटैक हो रहा है। ये सबको नहीं होता, ये किसी किसी को होता है। तो ये क्या चीज़ है? इसको क्या, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? आप तो बोल रहे दमे का अटैक, लेकिन है क्या है दरअसल? हाइपर सेंसिटिविटी। किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी? ये टाइप 1 है, ये इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ये फौरन होती है। ये नहीं कि अभी हुआ है आपको 2 दिन बाद अटैक आएगा, नहीं नहीं, अभी होगी, अभी हुआ है अभी होगी, इमीडिएट है, ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है। और इसमें कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन काम आ रहे हैं, कौन सी एंटीबॉडीज? और मैंने बताया ना 1, 2, 3 में एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन इसमें कौन सी वाली? IgE। इस पेशेंट को इस वक्त अगर आप ब्लड CP कराओगे या वहाँ IgE दिखाओगे, तो ये जो एलर्जी के पेशेंट होते हैं, आपने देखा है डॉक्टर लिख के देते हैं सीरम IgE करा के आओ, तो ये IgE होता है एक्चुअली, जिनको एलर्जी भी होती है, तो ये भी हाइपर सेंसिटिविटी है। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी उमूमन डिजीज के तौर पर, या अस्थमा का अटैक हुआ, या इंजेक्शन को गलत लग गई, पेनिसिलिन के अगेंस्ट रिएक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें, या इवन ड्रग रिएक्शन हो गया, या इवन आपका जैसे कोई अलग से कोई डिजीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंटीजन ऐसा दाखिल हो गया जिसके अगेंस्ट IgE पड़ी हुई है आपके बॉडी में, तो हम इसको कहते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट एक टाइप है जिसमें एंटीबॉडीज इस्तेमाल हो रही हैं। कौन सी? IgE एंटीबॉडीज। और स्टेप्स ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया कि इस पेशेंट में क्या हो रहा है। इस पेशेंट के अंदर IgE इम्यूनोग्लोबुलिन सेंसिटाइज हो रही हैं, और सब्सिक्वेंट एक्सपोजर अगर हुआ दोबारा, पहले दफ़े से तो सिर्फ बन गई हैं, अब की बार सिमिलर एंटीजन दोबारा आ गए, तो अब खैर नहीं है आपकी। पहली दफ़ा तो सिर्फ ये है कि भाई चोरी करके चला गया, चलो ठीक है मैं होशियार हो गया। जैसे आज सुबह सुबह ही हमारे घर के बाहर, अब आजकल तकरीबन हर घर में 2-3 गाड़ियाँ, शहर के अंदर तो कार पोर्च इतने बड़े होते नहीं हैं, इतने बड़े तो घर होते हैं, कार पोर्च की साइज़ के तो घर हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ भी तो एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, दूसरी गाड़ी आई तो बाहर, सबकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। और रात जो है अभी सुबह को मैं उठाऊँ तो आगे साथ वाले घर वाले ने बताया कि गाड़ी से रात को चोरी हो गई है, पूरा डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें उतार के ले गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो रात को जो है वो फर्स्ट टाइम जो इतने सालों बाद अब ये रात को बोला, और मेरे पास जो CCTV लगे हुए थे, बोला कि फुटेज आप निकाल के दें, ये 3-4 घंटे की। जो मैंने कहा अभी तो मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, वापस आके देखता हूँ। तो अभी ये फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ है, रिएक्शन नहीं हुआ है, ये एंटीजन आया है वो अंदर से वो लेके। अब क्या हो गया? अब फर्स्ट टाइम तो ये हुआ, लड़ाई हुई नहीं, लड़ाई इसलिए नहीं हुई, अब क्या हुआ? पीछे सेंसिटाइज छोड़ गया हम जैसे, वो खुद हम ये वो सारे क्या हो गए? विजिलेंट हो गए।
अगली दफा एंटीजन के लिए तैयारी करके बैठा, अब हम सेंसिटाइज हो गए। अब जो नेक्स्ट एक्सपोजर होगा, माने हमने भी कोई तैयारी की होगी, अब जो नेक्स्ट एक्सपोजर होगा उसमें गंध हो सकता है, तो ये नेक्स्ट एक्सपोजर हुआ, क्योंकि अब की बार आईजी, पिछली दफा जब एंटीजन एंटर हुआ था तब सेंसिटाइज आईजीई नहीं थे, पिछली दफा जो एक्सपोजर हुआ था उससे आईजीई बने थे, और अब की बार जो नेक्स्ट एक्सपोजर हुआ उसमें गया काम से, उसके अंदर फिर ये होगा एंटीजन जो होगा बाउंड हो जाएगा आईजीई के साथ, और इसके साथ आप देखेंगे कि क्या हो जाएगी, साइटोलाइसिस, माने ब्रेक हो जाएगा उसका मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अंदर से वो जहर उगलेगा, क्या होगा वो हिस्टामिन, हिस्टामिन शदीद तरीके से, अगर लोकली किया है तो मुंह सूजा ये होगा मामला, लेकिन अगर थ्रू आउट कर दिया तो वेजोडाइलेटेशन, बीपी फॉल और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एकदम से डिस्निया, और अगर शदीद हो गया तो सांस रुकी जाएगी, और इसके साथ आप देखेंगे कि इवन ब्लड प्रेशर भी फॉल कर, नो पल्स नो बीपी एंड यू विल हैव मैसिव ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अगर फौरी तौर पे उनको डायलेट करना, ऑक्सीजन देना, साथ में ब्रोंको वेजो कंस्ट्रिक्शन करने के अगर इंतजामात नहीं है, ये वार्ड में हो गया ना तो पेशेंट बच जाता है, लेकिन अगर ये ओपीडी में हुआ या यहाँ आपके क्लिनिक पे हो गया तो आपके पास इतनी किट होती नहीं है, और पेशेंट उमूमन कहते हैं ना कि इस किस्म की इंजेक्शन है ओपीडी में या इस किस्म की इंजेक्शन है क्लिनिक्स पे नहीं लगानी चाहिए, या आपके पास इतनी अरेंजमेंट हो और आपके पास एक्सपर्ट हो जाए तो वार्ड में तो इससे ऐसी रोज़ होती है, नर्सेज एटीडी देख भी दिए और उनको बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं होगा, लगा देते हैं, और लग भी जाती है, और उस पर रिएक्शन शुरू हो जाता है ना एकदम से, तो ये फ़ौरन किट लेके आती है, उधर पड़ा होता है सब कुछ। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि चलो यार हो जाएगा कोई मसला नहीं है, मैंने हम रोज़ लगाते हैं, धोता थोड़ी है कुछ, लेकिन बहरहाल रोज़ लगाते हैं तो डेली टेस्ट करना चाहिए, हर पेशेंट पे टेस्ट करना चाहिए, ये अपनी आदत डाल दें, क्योंकि पेशेंट पे आप रिस्क नहीं ले सकते। ऐसे नहीं कि मैंने 1000 लोगों को लगाया है किसी को नहीं हुआ है रिएक्शन, 1000 में से अगर एक को हो गया ना तो जान होती है इंसान की, ये नहीं कि मैंने 1000 को लगाया कुछ को नहीं हुआ, 1001 को लगाया ना तो प्रीवियसली जिनको नहीं हुआ है ना, समझ लो कि सारी आपकी जो भी आपकी रेपुटेशन है वो सारी हो जाएगी, एक केस से हो जाएगी, मशहूर हो जाएंगे आपके इस डॉक्टर ने पेशेंट मारा था पहले, फिर आपकी वो जो जितनी भी सर्विसेज हैं ना ये सारी चली जाएंगी। तो लोग नहीं बख्शते हैं ऐसे, ये लोग आपकी तब तक इज्जत करते हैं जब तक मुसलसल आप उनकी खिदमत करते रहें, उसमें से कहीं आपने एक दफ़ा नहीं किया ना तो ये पिछली सारी रिकॉर्ड आपकी, हाँ बिल्कुल आपके हाथ से यूँ समझ लो कि आपने पूरी किताब लिखी ना अगर आप, तो वो जो इंक पॉट है वो आपके हाथ से गिराना तो पूरी किताब चली जाएगी, वरना आपने बड़ी मेहनत से पूरी किताब लिखी हुई है, तो आपसे एक गलती हो जाएगी तो ये, क्योंकि इंसान की जान है, ये इंसान की जान बख्शी जो है ना आपको, उसके पेरेंट्स उसके जो अटेंडेंट्स है कभी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे हाँ डॉक्टर ने जो है ना वो काफ़ी मेहनत की और काफ़ी इलाज लोगों का किया है, लोगों की मेहनत, वो आपने दूसरों का किया है, इसका बंदा मारा है आपने, वो इसके यानी इसके रिटर्न में बख्श नहीं देगा आपको कि आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है, वो दूसरों के हैं, वो मेरे नहीं हैं, मेरा तो बंदा मारा है आपने, अंडे से तो बख्शेगा नहीं आपको वो। अब इसमें देखें क्या हुआ, हिस्टामिन रिलीज, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज, एडिमा, स्मूथ मसल स्पाज्म तो डिस्निया, और उसके बाद टिश्यू डैमेज वगैरह वो अपनी जगह पे होगा। तो क्लिनिकल एग्जांपल्स क्या हुए इसके, सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस, मैंने हिस्टामिन पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर गया, सिस्टमिक तो आप देखें ये कैसे कैसे दाने 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 नहीं होंगे, उसको सांस भी घुटेगी और गिर भी जाएगी। एलर्जिक रिएक्शंस जैसे एस्थमा वगैरह होता है, या इवन जैसे मुंह पे देखे दाने दाने हो गए, ये फौरी तौर पे होगा, यानी आपने लगाया कोई ऐसी चीज हुई फौरन, ये इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। एंजियोएडिमा देखिए मुंह कैसे सूज गया इसका। फिर दूसरा है टाइप 2, इसको देखें, ये भी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी इंटरवीन कर रही है, यहां भी एंटीबॉडीज है, क्योंकि पहले 3 जो है एंटीबॉडीज आर फॉर्म देयर। अब इसके अंदर क्या है मसला, है इसको थोड़ा सा समझें आप, और इसमें कुछ डिजीजेज जो आ रही हैं उनको थोड़ा सा देखें। टाइप 1 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअली खुद विदाउट एनी प्रोसेसिंग, किसी की मदद के बगैर वो एंटीबॉडीज एक्ट करना शुरू कर देती हैं, शुरू कर सकती, एक तो ये होती है। दूसरी एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जब वो बनती हैं तो एंटीजन के अगेंस्ट तब तक नहीं लड़ सकती जब तक एंटीबॉडीज के साथ
वो एंटीबॉडीज किसी के साथ मिल न जाएं। यानी एक बंदा है ना जो पैदल आ जाए, वो पैदल ही आके किसी के साथ लड़ जाए। एक होता है वो जो पैदल ना आ सके, उसके लिए आने के लिए गाड़ी की जरूरत हो कम से कम। या एक बंदा ऐसा है जो हाथ से किसी को दबोच सकता है। एक बंदा ऐसा है कि ऐसे नहीं, उसके हाथ में गन होनी जरूरी है, गन चला सकता है बहुत अच्छी। तो होगा क्या, जिसके हाथ में गन है वो खुद एंटीबॉडी है, लेकिन गन के बगैर वो नहीं लड़ सकता। वो जो गन है वो एक्चुअली कुछ प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में मौजूद होती हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। इम्यूनिटी में सिर्फ एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। उनमें से एक चीज है क्या, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। उनको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जब तक एंटीबॉडीज के साथ फिक्स नहीं होंगी तब तक वो एंटीबॉडीज काम नहीं कर सकेंगी। मिसाल क्या है, जैसे अगर गन मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर गन मेरे हाथ में है तो पहलवान भी सामने होगा ना, मैं उसको शूट कर दूंगा। और कहां वो पहलवान, बगैर गन के दोनों को साथ कर दो तो मेरा सुरमा बना देगा वो। लेकिन अगर मेरे हाथ में गन है तो मैं भी वही हूं, वो भी वही है, लेकिन ताकतवर मैं हूं ज्यादा, क्योंकि मेरे हाथ में गन है। तो इसका मकसद ये होगा कि अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग प्रोटीन्स हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग अगर एंटीबॉडीज हैं, तो दे आर वेरी वेरी डेंजरस। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज जो हैं वो अकेली भी हों तो भी किसी को दबोच सकती हैं। अब ये जो अभी बता रहा हूं मैं, ये इम्यून रिएक्शन जो है ये डिपेंडेंट है किस पे, एंटीबॉडी पे। लेकिन कौन सी एंटीबॉडीज, जो कॉम्प्लीमेंट के साथ हो। अब देखो क्या है इसमें, अब क्या इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज अब क्या कर रही हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, एंटीजन के साथ लड़ेंगी और क्या करेंगी, क्या करेंगी। लेकिन वो जो एंटीजन है, अभी समझ लेना क्या मामला है, वो जो एंटीजन है जिसके साथ लड़ेंगी ये, आपसे ये तो अच्छी बात है, बुरी बात है क्या, अच्छी बात है। एंटीजन जो तुम्हारी दुश्मन है उनके अगेंस्ट तुम्हारा गार्ड लड़ेगा अपनी गन के साथ, क्या बुरी बात है क्या, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है। बुरा इसमें यह है कि जिसको तुम एंटीजन बोल रहे हो वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी, उसके अगेंस्ट लड़ रही है। यानी एंटीजन भले हों, चलते हुए आदमी से लड़ रही हैं, लेकिन चलता हुआ आदमी वो आप खुद हैं, जिसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तुम्हारा चौकीदार तुम्हारी दी हुई गन से तुम्हें मार रहा है। क्या ये अच्छी बात है, क्या ये इम्यूनिटी है। या चौकीदार बोलेगा मुझे तो जिस काम के लिए दिया गया है मैं तो वही काम कर रहा हूं। वही काम कर रहे हो तुम, दुश्मन को पहचान नहीं रहे हो, तुम अपने मालिक पर ही शूट कर रहे हो। कोई गड़बड़ हुई है, या तो वो पहचान नहीं पा रहा है, या कोई मसला हुआ है, तो क्या इसको इम्यूनिटी कहूंगा मैं, या एडवर्स रिएक्शन हुआ है इम्यूनिटी का। इस इम्यूनिटी को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। क्या काम आया है इसके अंदर, लिम्फोसाइट्स या एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। क्या एंटीबॉडीज अकेली के गन के साथ, तो इसका मकसद ये कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग के साथ। तो इसका मकसद ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ ये काम में आया है। मसला ये है कि लड़ेगी किसके साथ, अपनी एंटीजेंस के साथ, बॉडी की एंटीजेंस, बॉडी के टिश्यू, उनके सेल्स, उनको जाके डैमेज करना शुरू करेंगे। समझ गए। तो उनके साथ अगर डैमेज करना शुरू कर देंगी तो फिर क्या होगा, फिर इसका ये हाल होगा कि वो आपका टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा। आपका टिश्यू आपके अपनी एंटीबॉडीज के वजह से डैमेज हो रहा है, उससे डिजीज क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहां से देखिए क्लिनिकल एग्जांपल इसका देखें, ये आपने सुना हुआ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, सुना हुआ है आपने, हाइड्रोप्स फीटलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। बच्चा अगर पैदा हुआ, माँ को जो बच्चा हुआ है वो माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्योंकि अलग अलग है, इस वजह से बच्चा जो पैदा हुआ है वो हीमोलाइसिस के साथ पैदा हुआ है। ये सुना नहीं, मैंने बताया तो था लास्ट टाइम, आपको नहीं यार, शायद माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट ईयर वालों को बताया था। फर्स्ट देखो, अगर माँ ने कंसीव किया है, माँ के पेट में एक बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, चलो, माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है,
चलो होता रहे। माँ का ब्लड ग्रुप, माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता है, तो कोई मसला नहीं है। मसला तब है जब बच्चा डिलीवर हो रहा है और प्लेसेंटा उसके यूट्रस से, जब माँ के यूट्रस से हटा रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं, तो वो जो ब्लड है उसके सरफेस पर वो थोड़ा सा ब्लड अब इंटर हो जाता है माँ के ब्लड के अंदर। अब की बार वो थोड़ा इंटर होगा, पूरे 9 मंथ्स में कभी नहीं हुआ है, कभी मिक्स नहीं हुआ है, लेकिन जब हम डिटैच करेंगे तो बैरियर खत्म हो जाएगा और ऊपर जो ब्लीडिंग होगी वो उसके साइनसेस के अंदर इंटर होके माँ में इंटर हो गई है, थोड़ी सी सही हो गई है। बच्चा पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है। आपसे ये पहले पता लगाना था, पहले मुझे शक नहीं था। बच्चे का ब्लड हम थोड़ी निकाल के पता लगाते हैं, लेकिन शक तो आपको होना चाहिए था, क्योंकि फादर पॉजिटिव है, हो सकता है कि बच्चा पॉजिटिव हो। हाँ, दोनों अगर नेगेटिव हैं तो बच्चा भी नेगेटिव होगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन क्योंकि फादर तो है ना, अगर मदर को एडमिट किया है, वहाँ उसके मदर का ब्लड निकाला तो वो नेगेटिव है, वो पता चला कि फादर जो है वो पॉजिटिव है, तो इस वक्त तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए था कि बच्चा शायद पॉजिटिव होगा। चलो होता रहे। कौन सा ब्लड मिल जाता है इन दोनों का? अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर क्या होगा? डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा के बाद, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के बाद क्या होगा? ब्लड थोड़ा मदर के अंदर इंटर हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव का जो ब्लड अंदर इंटर होगा, क्योंकि आरबीसी के अराउंड एंटीजन होगी, पॉजिटिव डी एंटीजन होगी, मदर में नहीं थी, तो ये डी एंटीजन अगर थोड़ी सी भी चली गई तो मदर के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट कर देगी। कौन सी एंटीबॉडी? किस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी? कौन सी एंटीजन गई है अंदर? ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हो, तो क्या होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? ये आरबीसी होता है, और आरबीसी के अराउंड, उसकी सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक एंटीजन होती है जिसको हम कहते हैं डी एंटीजन। इसका नाम होता है डी एंटीजन, और इसको बोलते हैं रेसस फैक्टर, आरएच फैक्टर। ये हो तो पॉजिटिव, ये ना हो तो नेगेटिव। 85% लोगों में होता है, तो 85% पॉपुलेशन में लोग क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और 15% लोग नेगेटिव होते हैं। फिर ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो, ए बी नेगेटिव हो, ओ नेगेटिव हो, जो भी हो, ये पॉजिटिव है। अगर ये डी पॉजिटिव है और ये वाले आरबीसी बच्चे के डिटैचमेंट और सेपरेशन के बाद अगर ये माँ में इंटर हो गए, जिसके आरबीसी के अराउंड डी नहीं है, तो ये वाला डी जब अंदर जाएगा तो मदर का इम्यून सिस्टम इस डी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट कर देगा। तो ये एंटीबॉडीज क्रिएट कर देगा। ये डी जो है अंदर गया तो इसमें क्या क्रिएट कर देगा? एंटी डी क्रिएट कर देगा, जो उसमें नहीं थे। ये इस डिलीवरी के बाद उस मां में पैदा हो गए। अब ये एंटी डी क्या करेंगे? मां को क्या करेंगे? डी के साथ लड़ेंगे। भाई क्या करते हैं? एंटीजन जो होगा वो अपने एंटीबॉडी क्या करता है? अपने करस्पॉन्डिंग एंटीजन के साथ लड़ता है। तो ये किस एंटीजन के साथ लड़ेगा? डी के साथ। लेकिन डी तो मां के पास है ही नहीं, तो क्या करेगा? कुछ नहीं। मां के सीरम में, मां के प्लाज्मा में ये घूमता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे सर फिर पढ़ा क्यों रहे हैं आप, जब कुछ भी नहीं करेगा? तो इसको तो कुछ नहीं करेगा मां को। हाँ, बेबी तो चला गया, बेबी तो मां के बाहर है, अभी बेबी को क्या करने वाला है? अगले बेबी के लिए डेंजरस है। अगर ये नेक्स्ट बेबी जो है, नेक्स्ट बेबी अगर वहां दोबारा कंसीव किया उसने, और अगर ये नेक्स्ट बेबी भी पॉजिटिव हुआ, तो अगर ये नेगेटिव हुआ ना, अब चांसेस ये हैं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव में डी है, उसमें डी नहीं है। अब चांसेस हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ये हुआ तो प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रीवियस बच्चा पीछे ये गंद करके गया है, क्या करके गया है? मां में एंटी डी क्रिएट करके गया है। ये एंटी डी प्लेसेंटा से गुजर के बच्चे में चली जाएंगी। अगर ये बच्चा नेगेटिव है तो ये एंटी डी इस डी को मारेगा। डी है ही नहीं तो कुछ नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर ये डी इधर है और यहां है और बच्चा फिर इस वक्त दूसरा बच्चा भी आरएच पॉजिटिव है, तो ये एंटी डी है और इसके पास डी है। और जो डी है, क्योंकि वो बॉडी का हिस्सा है, और ये एंटीबॉडी है जो क्रिएट हुई है किसी एंटीजन के अगेंस्ट, और जिसकी सिमिलर एंटीजन यहां है मौजूद,
तो अब की बार क्या ये इसको देख लेगा या उसको कम्बैट करेगा? जब इसको फाइट करेगा तो फाइट करके क्या ये आरबीसी रहेगा कि आरबीसी टूट जाएगा? जब टूट जाएगा तो हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगी। जब हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगी तो बिलिरुबिन बनेगी, तो जॉन्डिस भी हो जाएगा, एनीमिया भी हो जाएगी। और जब एनीमिया हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हेड इतना बड़ा, बच्चा बाहर निकलेगा जब, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या आरबीसी रप्चर होंगे तो क्या बोन मेरो देखता रहेगा कि और आरबीसी देने की कोशिश करेगा और रैपिडली देने की कोशिश करेगा? और जो रैपिडली देने की कोशिश करेगा तो सारे मैच्योर देगा कि इमेच्योर भी दे देगा? यानी जब जल्दी जल्दी रोटियां पकाओगे तो कच्ची पकी भी भेजोगे ना, जाहिर है, तो जल्दी पकाएंगे तो फिर क्या होगा? हाफ कुक्ड भी भेज देंगे। तो जो आरबीसी बाहर निकलेंगे सारे छोटे छोटे वाले होंगे, नॉर्मल साइज वाले, के कुछ बड़े बड़े भी होंगे, तो बड़े भी होंगे। और बड़े वाले सेलों को कहते हैं ब्लास्ट सेल्स। इसलिए कौन से ब्लास्ट? आम से ब्लास्ट के ये आरबीसी ब्लास्ट हैं, तो इरिथ्रोब्लास्ट हैं। और इरिथ्रोब्लास्ट बाहर आके क्या करेंगे? बड़े बड़े सेल्स और रप्चर होंगे, इमोलाइसिस होगी, और इमोलाइसिस होगी तो फिर हम उसको कहते हैं क्या? ये हो गया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या हुआ है यहाँ पर? ये भी हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन है। क्या हुआ है? एंटीबॉडी आई है, क्या किया है उन्होंने? एंटीजन मारा है। कौन सा एंटीजन? जो बाहर से एंटीजन आया है कि तुम्हारे बॉडी का हिस्सा है एंटीजन? तो तुम्हारे बॉडी का हिस्सा है एंटीजन जिसको इसने मारा है। ये टाइप 2 सेंसिटिविटी कहलाती है। कौन सी वाली? जिसमें कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है और एंटीबॉडी यूज हुई है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टाइप 2 सेंसिटिविटी, कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग। चलो लग गया तो और भी बता देता हूं एक और, इसको देख लो। ये बड़ा कॉमन है, ये खासा आपने पहली दफा सुना होगा, लेकिन आप आगे चल के इसको देख भी लेंगे आगे। इसका नाम है गुड पास्चर सिंड्रोम। है क्या? बॉडी के अंदर कहीं से एंटीजन गई थी जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। जैसे मां के अंदर चली गई ना बच्चे वाली, और मां को एंटी डी क्रिएट करवा दी उसने, वैसे ही आपके बॉडी में कहीं से एंटीजन आया था, कोई अननोन एंटीजन है, पता नहीं, बॉडी ने उसको बर्दाश्त नहीं किया, बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी। एंटीबॉडीज जो बना दी हैं, तो एंटीबॉडीज ने कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग, यानी एंटीबॉडी एक दफा बन गई और उसने कहीं से गन पकड़ ली। कहां से? प्लाज्मा में मौजूद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को पकड़ लिया। अब एंटीबॉडी अकेली है कि कॉम्प्लीमेंट साथ है उसके? अब क्या करेगी? अब आपके एंटीजन से लड़ना है उसको, जाहिर है, अब बन गई है, गन हाथ में है तो कुछ तो करेगी। वो क्या करेगी? आपके एंटीजन से लड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया कि दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज अगेंस्ट योर ओन टिश्यू, जो आपके जिस्म का हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है आपका। वो एंटीजन है कौन? वो एंटीजन है आपके जिस्म का हिस्सा। हिस्सा का मकसद ये नहीं है कि क्या हर टिश्यू से लड़ेगी, कि उस टिश्यू से लड़ेगी जिसको ये पहचानती है उसका अपना दुश्मन करके। कौन सी? क्योंकि आई एम सेंसिटाइज्ड अगेंस्ट सर्टेन पर्टिकुलर एंटीजन, और अब के बार वो पर्टिकुलर एंटीजन तो पता नहीं कौन सा था। अब मैं पहचानता हूं कि दो जगह ऐसी हैं जो उस एंटीजन जैसी हैं जिसके अगेंस्ट मैं बना हूं, तो फिर क्या किसी को भी मारेगी या उस एंटीजन को डैमेज करेगी? और वो एंटीजन दो जगह पे रहता है। एक जगह है लंग और एक जगह है किडनी। किडनी में आपने ग्लोमेरुलस तो सुना होगा, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का बना हुआ होता है, और लंग में भी कैपिलरीज होती हैं जहां आपका ब्लड आता है, जहां डिफ्यूजन होती है एल्यूलाई के साथ। और कैपिलरी जब आप देखोगे ना, कैपिलरी का स्ट्रक्चर बहुत दफा बना चुका हूं, ये कुछ भी नहीं होती है। कैपिलरी में बाहर होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके अंदर लगा होता है क्या? एपिथेलियम। और ये कैपिलरी जो ग्लोमेरुलस की होगी उसमें भी क्या होगा? यही, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है? एल्वुलर कैपिलरीज की। और ये किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है? ग्लोमेरुलस की, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये में बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इससे एंटीबॉडी की पसंदीदा खुराक है। अकेली एंटीबॉडीज या हाथ में गन है उनके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन उसके साथ फिक्स है। अब खैर नहीं है आपका इसका भी और इसका भी। अगर इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को उड़ा दिया तो क्या ये ब्लड रहेगा कि लीक हो जाएगा? और लीक होके क्या यूरिन में नहीं आएगा?
तो यूरिन वैसा रहेगा कि रेड हो जाएगा? तो हम बोलेंगे कि ये हो गया है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया कहते हैं ग्रॉस ब्लड इन दी आरबीसीज और ग्रॉस ब्लड इन योर यूरिन। क्या सिर्फ ये होगा कि यहां से रप्चर होगा तो कफ में भी आएगा स्प्यूटम, इसको बोलते हैं हेमोप्टिसिस। क्या है हेमोप्टिसिस? हेमोप्टिसिस मीन्स इफ देयर इज ए ब्लड कमिंग विद द कफ, कफ से अगर ब्लड आ जाए बाहर तो इसको हेमोप्टिसिस कहते हैं, और अगर उल्टी से आ जाए तो इसको हेमेटोमेसिस कहते हैं। एमेसिस, एमेसिस उल्टी को बोलते हैं, वोमिटिंग को। हेमेटोमेसिस मीन्स ब्लड इन द वोमिटस। और अगर आपने कफ की और स्प्यूटम में ब्लड आ गया तो हेमोप्टिसिस। अगर यूरिन करने गए रेड नजर आया, लैब में भेजा, पता चला आरबीसी हैं लाखों में हजारों में, रेड है इस वजह से, तो बोलेंगे हेमेचूरिया। ग्रॉस हेमेचूरिया माने सीधा सीधा रेड ब्लड, सीधा सीधा रेड यूरिन, यूरिन नजर आ रही है यूरिन जैसी, माइक्रोस्कोप में पता चला कि कुछ आरबीसी ठीक ठाक है उसमें, तो फिर इसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया है। चंद आरबीसी होने से रेड नहीं होगा आपका यूरिन, लेकिन आ तो गया है उसके अंदर, तो इसको हम कहते हैं हेमेचूरिया। तो ये पेशेंट में क्या हो जाएगा, ये दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेनें सेम एंटीबॉडी के साथ डैमेज होंगी और सिम्टम्स होंगे पेशेंट में क्या, हेमोप्टिसिस, हेमेचूरिया। हेमोप्टिसिस, हेमेचूरिया एक साथ पेशेंट में हो जाए ना अगर, तो हमेशा दिमाग लड़ाना अपना कि इसको ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इसको कहते हैं गुड पास्चर्स सिंड्रोम। तो गुड पास्चर सिंड्रोम में दो चीजें होती हैं, हेमोप्टिसिस ड्यू टू द रप्चर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडी डैमेज, or simultaneously there will be damage to the glomerular basement membrane that will lead to the leakage of blood in urine also. तो इसको हम कहते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। ये गुड पास्चर सिंड्रोम एंटीबॉडी है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडी की वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज होना। तो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी? दो, टाइप 2 की हाइपर सेंसिटिविटी। अब देखें फिर एक और है टाइप 2। टाइप 2 में दो हैं। कैसे दो? एक टाइप 2 वो है जिसमें एंटीबॉडी बनी है अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन, बट दिस एंटीजन इज फिक्सिंग विद द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, माने बन तो गया है, हाथ में गन है, और क्या किसके साथ लड़ा है? बाहर आने वाली किसी चीज के साथ नहीं, तुम्हारे टिश्यू के साथ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये है टाइप 2। टाइप 2 की पहली चीज ये थी। अब टाइप 2 का दूसरा हिस्सा है, दूसरा टाइप, सब टाइप, ये भी टाइप 2 है। अब की बार एंटीबॉडी बनी है, देखना फर्क, एंटीबॉडी बनी है लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट के साथ जुड़ के नहीं लड़ रही है आपके साथ, अकेली लड़ रही है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट, विदाउट गन इन द हैंड, यूं समझ लो इसकी मिसाल। अब वो लड़ रही है, कैसे लड़ रही है, किसके साथ? क्या इंतजार कर रही है कि कोई बाहर से एंटीजन आए कि तुम्हारे एंटीजन के साथ लड़ेगी? फर्क क्या हुआ पहली टाइप 2 और इस टाइप 2 में? वो कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये कॉम्प्लीमेंट के साथ नहीं। अब ये कर क्या रही है ये देखना, और बड़ी मशहूर डिजीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या कर रही है? ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी है, सर्कुलेट कर रही है और आपके एंटीजन के साथ लड़ रही है, और वो एंटीजन इत्तेफाक से क्या है? तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। क्या है? कोई सेल है, सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, बेटा बात नहीं करो, सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है। इसकी मिसाल दे रहा हूं मैं, थायराइड ग्लैंड आपने सुना होगा, थायराइड ग्लैंड नेक में है, ये सेंटर में बैठा हुआ है। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर हिस्टोलॉजी देखेंगे ना, तो उसके अंदर ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, भरा हुआ होता है लाखों ऐसे फॉलिकल्स हिस्टोलॉजिकली, इनको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स। एक फॉलिकल को बाहर ले आओगे ना तो ऐसा होता है, ये जो मैं सर्किल बना रहा हूं ना, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये हैं इसके सेल्स। ये एक एक फॉलिकल दिखा रहा हूं, वन फॉलिकल। ये क्या है? ये पूरा क्या है? फॉलिकल है, और एक एक सेल को कहते हैं फॉलिकुलर सेल।
ये जो एक फोलिकुलर सेल है, ये एक फैक्ट्री है जो बना के देगी आपको T3 T4। कौन? थायराइड हार्मोन्स। सारा दिन बनते रहते हैं, सारा दिन आप काम करते रहते हैं, ये सारा ये काम करता है। और आज जो आप खड़े हैं ना ये 6 फुट के, इसकी वजह से। ये जो आपका ब्रेन आज काम कर रहा है ना, इसकी वजह से। अगर पैदाइश के पहले 5-6 सालों में ये ना होता ना, तो आज आप पागल खाने में होते, मेंटली रिटार्डेड होते। इतना इंपॉर्टेंट है। इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में ये बचपन से ही आपके साथ मौजूद है। जिनके पास ये नहीं है, उनको अगर एक दफ़ा देख लेंगे ना, तो सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकेंगे उनको। सारी एक्टिविटियाँ डाउन होती हैं। इसका नाम है थायराइड ग्लैंड्स। चलो, होता है ये थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड बनाता है ये थायराइड हार्मोन्स। किसके स्टिमुलस से? पिट्यूटरी ग्लैंड के। ये आपने देखा होगा और सुना भी होगा आपने, ये हाइपोथैलेमस के साथ लगा है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसमें मौजूद होता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब जरूरत होती है बॉडी को, थायराइड ग्लैंड को अकल नहीं है कि मुझे यार बॉडी को जरूरत है, मैं T3 T4 निकाल लूं। सेंटर को, यहाँ से ऑफिस को इतला देंगे कि T3 T4 कम हो रही है, आप मेहरबानी करके ग्लैंड को इतला करें। तो वो कैसे जाएगा? ब्लड के जरिए वहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी। और किसको? ऑफिस को। ऑफिस कौन है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या देगा? TSH। यही ब्लड जो पिट्यूटरी को दे रहे हैं आप, वो थायराइड से भी तो गुजर रहा है ना। तो थायराइड को खुद क्यों नहीं बोल रहा है? ये थायराइड कंप्लेन नहीं लेता है, थायराइड बनाता है, ऑर्डर उसको ऊपर से आता है। तो इसलिए कंप्लेन कहाँ लेके जाओगे? एप्लीकेशन तुम ऑफिस में लेके जाओगे। अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई कचरा है तो आप स्वीपर को नहीं बोलोगे। तरीका क्या है? आप जाएंगे म्यूनिसिपल, उसको बोलेंगे कि आप स्वीपर का, स्वीपर आपका ऑर्डर नहीं समझेगा, क्योंकि वो आपका नौकर नहीं है, वो म्यूनिसिपल का नौकर है। वो म्यूनिसिपल वाले जो बोलेंगे वो करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम स्वीपर को बोलते हैं ये सफाई क्यों नहीं करते? वो कहते हाँ साफ करूंगा, करेगा नहीं। आपने तरीका ही गलत अख्तियार किया। अंग्रेजों ने बनाया ही ऐसा सिस्टम है। आप थ्रू प्रॉपर चैनल है, सुना है ना आपने, फाइल पुटअप करें और फिर वो जो 4 जगहों से गुजरेगा तब जाके आपका। इससे बेटर है आप खुद ही झाड़ू दे दें। तो यहाँ से ये क्या है? ये इस तरीके से जाएगा। और TSH जो है वो एक्ट करेगा किस पे? फॉलिकल्स पर। वो फॉलिकल पे ऐसे ही कर देगा, या उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते होंगे? रिसेप्टर होते हैं। और रिसेप्टर होते हैं, जब रिसेप्टर पर आके TSH लगेगा तो फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और जल्दी जल्दी काम करके T3 T4 दे देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, आ जाए। हाँ, कहाँ से आई टीम? WHO से। अच्छा, ठीक है, सही है। लोग लोकल हैं या बाहर के? लोग लोकल हैं या WHO के अंग्रेज हैं? लोकल है। अच्छा, यहाँ के अंग्रेज, काले काले अंग्रेज। हाँ, ठीक है। Understand? So this was a type 2, second type of type 2, second subgroup. What was the problem? What was the mechanism? TSH works on your follicular cells. वहाँ पे काम करेंगे और वो क्या करेंगे? वही करेंगे जो उनको करना है, T3 T4 निकालेंगे। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है अंदर। जब तक बेटा बात नहीं करो, WHO वाले आ रहे हैं, कोई आप रिश्ता देखने वाले नहीं आ रहे हैं, सीरियस हो गए हैं सब, ऐसे बैठे रहे जैसे बैठे रहते हैं तमीज के साथ। तो यहाँ पर क्या है? ये TSH एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल है। आपसे क्यों पढ़ा रहे हैं? कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ आ गई है? अब आ गई है हाइपर सेंसिटिविटी। कहानी में ट्विस्ट हुआ क्या है? वो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, अचानक बन गई हैं, पता नहीं क्यों बनी है, हमें नहीं पता। ऑटो एंटीबॉडीज आपको पता है ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज का कुछ पता ही नहीं होता है। पता ये होता है कि हो क्या रहा है, लेकिन ये एंटीबॉडी खतरनाक बनी क्यों है इसका कुछ नहीं पता होता। इसलिए क्योर कर नहीं सकते आप सिर्फ क्या करेंगे? सिम्टम्स को थोड़ा डाउन रखेंगे, सारी जिंदगी चलती रहेंगी। अब इसमें क्या होगा? ये एंटीबॉडीज बन गई हैं,
वो एंटीबॉडीज बेसिकली एंटीजन, किसी एंटीजन के अगेंस्ट, अननोन एंटीजन के अगेंस्ट बन गई हैं, बस बन तो गई हैं। वो कौन सी एंटीबॉडीज हैं? कोई इम्यूनोग्लोबुलिन बन गई हैं। अब वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन बन गई हैं, दिस इम्यूनोग्लोबुलिन बन तो गई हैं, लेकिन ये इम्यूनोग्लोबुलिन ने जाके फॉलिकुलर सेल्स के उन रिसेप्टर्स को जाके ऐसे ही स्टिमुलेट किया है जैसे टीएसएच करते थे। आप उसे ऐसे क्यों, इन्होंने फॉलिकल ने इनकी बात क्यों मानी? क्योंकि रिसेप्टर की जो मॉलिक्यूलर शेप है ना, वो उस एंटीजन जैसा है जिसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी है। यानी ये एंटीबॉडी जो बनी है, तो उसको उस जिस एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी है, उसका उस एंटीजन का मॉलिक्यूलर शेप इस रिसेप्टर जैसा है। यानी एक डुप्लीकेट की है जो इस ताले में जाने जा रही है। क्या ताला बोलेगा इसको कि नहीं तुम तो इम्यूनोग्लोबुलिन हो, मैं तो टीएसएच से खुलता हूं? ताला कभी समझता है ये कि ये ओरिजिनल की है कि ये डुप्लीकेट की है? डुप्लीकेट की अगर वैसी बनी होगी तो ताला खुल नहीं जाएगा। या ताला बोलेगा ये बदतमीज, ये क्या कर रहे हो, ओरिजिनल की है, ये चोर चोर करके बोलेगा? ऐसे बोलेगा ताला? ऐसे हो जाए कोई स्मार्ट ताले जिसमें डुप्लीकेट की डालो और वो चोर 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 ऐसे बोले, ये बोलेगा या ये काम करेगा? खुल जाएगा। और खुलने का मतलब है क्या, क्या प्रोड्यूस करेगा? T3 T4। तो ये जो इस वक्त यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ये किस पे एक्ट करेगी? सिर्फ और सिर्फ थायराइड पे। इसलिए हम इसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, TSI। TSI जो प्रोड्यूस हुई हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, किस पे काम कर रही हैं? योर ओन टिश्यू पे, ओन रिसेप्टर्स पर, वहां से निकाल रही हैं। तो ऐसे पेशेंट को क्या हो जाएगा? हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, और उसके साथ क्या होगा? उसके बाद तो आपको पता है थायराइड अगर इंक्रीज हो गया तो स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, ट्रेमर शुरू हो जाएगा, स्लीपिंग पिल्स होगा, हाइपरटेंशन, ये वो। और उसके साथ साथ ये जो आईज है ना, ये थोड़ी सी बाहर निकल आती हैं ऐसे। इसको कहते हैं एक्सोफ्थल्मास। ऑफ्थल्मास, ऑफ्थल्मास मीन्स आईज और एक्स मीन्स बाहर। तो ये बाहर इस तरीके से ऐसे। तो पेशेंट जाओ देखेंगे ऐसे आएगा। ये ज्यादातर फीमेल में होता है, 5:1 रेशो है फीमेल मेल रेशो। जहां 5 फीमेल आपको केसेस मिलेंगे वहां 1 मेल मिलेगा। और पेशेंट कैसे होगा? स्वेलिंग होगी, इधर इनलार्ज होगा थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड उसी साइज का होगा कि इनलार्ज हो जाएगा? ये सारे फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएगा। वो इनलार्ज होगा और आइज ऐसे बाहर होगी और वो फीमेल होगी। इसको मिला के इस डिजीज को बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। क्या बोलते हैं? ये थायरोटॉक्सिकोसिस कहलाता है। और इसको हम एक्चुअली ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। ग्रेव्स डिजीज, ये एपोस्ट्रोफी यहां नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम ग्रेव नहीं है, साइंटिस्ट का नाम ग्रेव्स है। और जब ग्रेव्स होता है तो ग्रेव्स डिजीज नहीं बोलते हैं, इसके बाद में लगा देते हैं एपोस्ट्रोफी, तो हो जाता है ग्रेव्स की डिजीज। तो नाम साइंटिस्ट का ग्रेव्स है, इसका दी ग्रेव्स डिजीज, तो इसको हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज की अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या हुई? एंटीबॉडी जनरेट हुई, और एंटीबॉडी ने आपके एंटीजन के ऊपर जाके एक्ट किया, और एंटीजन दरअसल रिसेप्टर है, और उसको स्टिमुलेट किया तो वो वही काम करेगा जो उसको करना है। तो एकदम से T3 T4 निकालेगा। तो क्या हो गया? ये है। तो ये मुसलसल बनते रहते हैं, मुसलसल ये होता है, फिर आपका थायराइड ग्लैंड इतना बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा, टिश्यू डैमेज होगा, ये वो सारी चीजें। इसलिए बेटर है कि थायराइड ग्लैंड को निकाल दो, क्योंकि हल इसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि ये जो TSI है ये तो जाएगी नहीं। जिसको डैमेज कर रही है उसको उड़ा दोगे तो भले घूमती रहे, कोई डैमेज नहीं कर पाएगी। आप बोले ये निकाल दूंगा तो फिर T3 T4 जो बन रहा था ये तो बनेगा ही नहीं, इसके बगैर मेरा कैसे चाह रहा है? भाई ये मार्केट में टेबलेट की फॉर्म में थायरॉक्सिन नाम से दवाई आती है, वो सारी लाइफ आप लेते रहेंगे, डेली 2 टेबलेट हो गए, टेबलेट जो भी है, ये चलता रहेगा, बस ठीक है। वरना इस हालत में आप जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा, आपके टिश्यू को डैमेज कर देगा। मैंने अपनी लाइफ में 2 ऐसे थायरोटॉक्सिकोसिस के दोनों दफ़ा इत्तेफाक से मेल हमने उनकी डेथ देखी। एक तो हमारे खुद कॉलेज का एक मुलाजिम था, एग्जामिनेशन सिस्टम का, एग्जामिनेशन ब्रांच का कोई लड़का था, मेरे ख्याल एज भी ज़्यादा नहीं थी कोई, इसको 35 के अंदर ही डाइड। मेल मत, वरना ज़्यादातर फीमेल ही देखी हमने, क्योंकि 5:1 का रेशो होता है। हमने हमेशा किताबों में देखेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस का जो फोटो बनाएंगे ना, वो अमूमन फीमेल का हो।
तभी दोगे ना, जाहिर है। न निकालेंगे तो पहले नहीं निकालेंगे, फिर भी कैसे थायरॉक्सिन देंगे? वो थायरॉक्सिन के अंदर पूरी इतनी लॉट पड़ी हुई है, वो उससे तो तुम परेशान हो। जब इतना थायराइड होगा तो फिर हम उस थायराइड को कम करने की कोशिश करते हैं थ्रू एंटी थायराइड ड्रग्स। एंटी थायराइड भी कितनी दे सकोगे? ये इससे तो नहीं होगा काम, आपको निकालना पड़ेगा इसको। जब तक सर्जरी के लिए फिट ना हो जाए तब तक तुम एंटी थायराइड देते रहोगे। TSH लेवल जिनकी बड़ी होती है, चलो अब बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ, बड़ा बात नहीं करो। TSH लेवल आपको पता है ये T3 T4 रेगुलेट कैसे होता है? बढ़ेगा, कम होगा, तो इसका क्या होगा? अगर ये बढ़ जाएगा तो इसका बढ़ा हुआ लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके असर दिखाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा क्या और TSH दो, कि TSH को रोको। क्या करो? रोको। तो TSH को रोकेगा और इसके रोकने की वजह से T3 T4 भी कम प्रोड्यूस होगा, रेगुलेशन। लेकिन अगर T3 T4 कम है तो यह जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा? TSH कम दो कि TSH बढ़ाओ? बढ़ाओ। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा TSH लेवल देख लेते हैं और हम जान पाते हैं कि अगर TSH लेवल हाई है तो यकीनन T3 T4 हाई होगा, कम होगा। तो अगर कम होगा तो इसका मकसद है कि इस पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म नहीं है, इस पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। अगर इसको हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर इसका इलाज क्या होगा? एंटी थायराइड दूं कि थायरॉक्सिन दूं? तो उसको थायरॉक्सिन देते हैं, क्योंकि ये इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये समझ गए आप? तो ये जो है, ये क्या हुआ? ये एंटीबॉडी विदाउट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज एक्टिंग ऑन योर ओन रिसेप्टर्स टू स्टिमुलेट योर थायराइड ग्लैंड। ये हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 का सेकेंड पार्ट है। टाइप 2 में दो हुए, एक था एंटीबॉडी अलॉन्ग विद द फिक्सिंग, जिसने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस भी किया और तुम्हारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी रप्चर किया और गुड पास्चर सिंड्रोम किया। और ये है टाइप 2 का दूसरा सब ग्रुप, जिसमें एंटीबॉडी अकेली है और तुम्हारे टिश्यू के अगेंस्ट लड़ी है, और टिश्यू के अगेंस्ट लड़के उसको वही काम किया है जो नॉर्मल कोई TSH वगैरह कर सकता है। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसको हम कहते हैं यहाँ पे थायरोटॉक्सिकोसिस। ये देख रहे हैं आप, ये थायरोटॉक्सिकोसिस का एग्जांपल है। ये देखें, आंखें देखें उसकी, और फर्दर इसका जो हम एग्जामिनेशन करेंगे और इसकी अगर हम लैब्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये टाइप 2 का दूसरा सब टाइप है। अब आ जाएं टाइप 3 पे। अब देखो, टाइप 1 जो था वो कौन सा वाला था? एलर्जी वाला, इमीडिएट। क्या हो रही थी उसमें? एनाफाइलेक्सिस, माना पूरी बॉडी अगर इन्वॉल्व हो गई, वाइड स्प्रेड हो गया तो एनाफाइलेक्सिस। दूसरी जो थी, इसमें एंटीबॉडी थी, ठीक है ना, एंटीबॉडीज। इसे एंटीबॉडी तो इसमें भी थी, IgE। एंटीबॉडी B फॉर बॉडी, A फॉर। अब जो आ रही है उसमें एंटीबॉडी अकेली नहीं है, एंटीबॉडी के साथ एंटीजन भी पड़ी हुई है, और दोनों गुत्थम गुत्था लड़ रहे हैं आपस में। तो जो तुम्हें ब्लड में नजर आएगा, एंटीबॉडी अकेली, एंटीजन के दोनों का मिला हुआ कॉम्प्लेक्स। तो अब की बार जो आ रहा है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। कॉम्प्लेक्स, A फॉर एनाफाइलेक्सिस, B फॉर बॉडी मीन्स एंटीबॉडी, एंड C फॉर। ये तीनों की तीनों, इनमें एंटीबॉडीज इस्तेमाल होती हैं। इसमें IgE इस्तेमाल हुई, इसमें IgG और M वगैरह मुख्तलिफ इस्तेमाल हुई हैं, और अब की बार इसमें भी IgG वगैरह इस्तेमाल। मकसद एंटीबॉडी इस्तेमाल होगी, लेकिन तरीका मुख्तलिफ है। उसमें IgE पहले सेंसिटाइज्ड, नेक्स्ट एक्सपोजर के साथ लगी, बेजोफिल को तोड़ा, हिस्टामीन बाहर आई, परमिबिलिटी फर्क हुआ ना। दूसरी वाली में एंटीजन कॉम्प्लीमेंट एंड बोथ आर फाइटिंग अगेंस्ट यूर टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन, RBC को रप्चर किया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस जैसे बताया, गुड पास्चर। दूसरे में अकेली एंटीबॉडी के कौन सा कॉम्प्लीमेंट छोड़ो, मैं आता हूं, और आके दबाया किसको? आके
तुम्हारे रिसेप्टर्स को। और रिसेप्टर से क्या काम लिया? इत्तेफाक से कौन से रिसेप्टर्स? थायराइड वाले। और थायराइड वाले को स्टिमुलेट किया तो क्या किया? और थायराइड वाले को स्टिमुलेट करके वहाँ से T3 T4 निकाला, थायरोटॉक्सिकोसिस। अब की बार दोबारा, अब जो तीसरा वाला है उसको देखो। ये अकेला नहीं है, ना उसको हथियार की जरूरत है, मसला उसका अलग है। उसका मसला ये है कि वो एंटीजन को पहचान लेता है, एंटीजन अंदर एंटर हुआ है, अपने करस्पॉन्डिंग एंटीजन को पकड़ेगा और पकड़ा उसको, दोनों की फाइटिंग हुई। वो जो फाइटिंग हुई है तो वो क्या बना? कॉम्प्लेक्सेस बन गए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। आपसे ये तो अच्छी बात है, अच्छा है, मेरा चौकीदार मेरे एंटीजन के साथ जो खतरनाक है उसके साथ लड़ा है। भाई लड़ा है तो ये लड़ाई क्या चलती रहनी चाहिए, या लड़ाई जल्दी से एंटीजन पे काबू पा के जान छुड़ाए? पुलिस वाला आपके घर जो है, कोई चोर आया है, आपने पुलिस को फोन किया या पुलिस को इतला दी, पड़ोसियों ने, पुलिस आ गई, घर पे आके उस चोर को दबोच लिया। वेरी नाइस, ये तो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अच्छी चीज है। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, पुलिस एंटीबॉडी, चोर एंटीजन। अब ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये पुलिस जो है वो चोर को लेके मेरे घर से दफा हो जाए ना, या ये दोनों अगले साल के लिए पूरे घर में मेरे घर में रहें, आप ही घर में रहें। चोर से बचाया है आपको, अब चोर से तुम्हें बच नहीं सका, अब वो पुलिस वाला भी मेरे गले पड़ गया, अब ये दोनों रह रहे हैं मेरे घर में। आप खुश हैं बहुत क्या कि ये होता रहे, या पुलिस ने मुझे बचाया? इसको आप ये कहेंगे पुलिस ने मुझे बचाया? आप चोर और पुलिस दोनों से मुसीबत में आ गए, और इस वक्त आपको चोर इतनी तकलीफ नहीं दे रहा है जितना पुलिस वाला दे रहा है। चोर और पुलिस मेरे कमरे में, मेरे का घर में रहे क्या अगले 6 महीनों तक? क्योंकि उसने चोर से जो मुझे बचाया है। अब 6 महीने के लिए मेरे पास रहे, मैं उठूं तो पता चला है दोनों किचन में खड़े हैं दोनों ही, और पता चला कि मेरे बेडरूम में मेरे बेड पे सोए हैं दोनों ही। ये मैं चोरी से बचा हुआ हूं, ये कितना मुझे चोरी से बचाया उन्होंने। देखें, वो मेरी प्राइवेसी तबाह हो, मैं घर में खुद को मेहमान फील कर रहा हूं, ऐसे लग रहा है यही मालिक है। ये है तुम्हारी हाइपर सेंसिटिविटी। वरना तो ये देखा जाए अच्छी चीज है। वैसे चोर आ गया, पुलिस वाला आ गया, वेरी नाइस, ये वेरी नाइस है। ये एडवर्स रिएक्शन हो गया है, ये गड़बड़। मैं समझता हूं चोर है, पकड़ के ले जाएंगे, जाके उसको छितरोल करो, उधर जान छोड़ो मेरी, जो तुम्हें करना है, रियासत उसके साथ जो करे। ये गड़बड़ यहां हो गई है। इसका मकसद है कि मसला किसका है? सिर्फ एंटीबॉडी का, कि एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का? और ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये फिर अब आपको बख्शेगा नहीं। ये कहीं कहीं तो इधर तो उधर तो फलां तो ये जगह। ये जो एंटीबॉडी है ना आपकी, ये ऑटो एंटीबॉडी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस कभी किसी टिश्यू के ऊपर बैठ जाएंगे, तो कभी किसी टिश्यू के ऊपर, तो कभी यहां तो कभी वहां। अब क्या ऐसे बैठ जाएंगे कि नुकसान करेंगे उधर? क्या वो टिश्यू बर्दाश्त करेगा? क्या किचन तुम्हारा इनके ये बदतमीजियां बर्दाश्त कर सकता है क्या? पुलिस वाला और चोर दोनों किचन में बैठ के वहां कुकिंग कर रहे हैं। मकसद कहने का ये किचन को छोड़ देंगे क्या? ऐसे नहीं, ये तबाह बर्बाद करें, जहां जाएंगे वो तबाही कर देंगे। इसका मकसद है कि जिस टिश्यू में ये कॉम्प्लेक्स बैठ जाएगा, उस टिश्यू में वो डैमेज शुरू करेगा। इस किस्म का डैमेज बड़ा स्लो होता है लेकिन बहरहाल होता तो खतरनाक है। और ये खतरनाक जो होगा वो किसी जगह पर जाके एंडोकार्डियम में बैठ गया तो इधर एंडोकार्डाइटिस कर देगा, इधर किडनी में बैठ गया तो उधर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर देगा, तो किसी जगह जहां बैठ गया वहां डैमेज शुरू कर देगा। किसी जॉइंट में जाके बैठ गया तो उधर तुम्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस कर देगा। ये क्या है? ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जहां ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये तुम्हारे टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं। क्या ये पहले जैसा है जहां आईजीई मास सेल्स पे बैठ के रप्चर करके हिस्टामिन निकाल रहा है? ऐसा कुछ है क्या यहां पर? ऐसा कुछ नहीं। क्या ये सेकंड टाइप जैसा है जिसमें एंटीबॉडी आई, गन पकड़ा, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और जाके टिश्यू को डैमेज किया जाके? नहीं, वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा था एंटीजन। क्या दूसरा ऐसा है कि खुद गया और रिसेप्टर्स को ऊपर डाल के उसकी सीक्रेशन करवाई? ऐसा भी नहीं है। टाइप 2 में दोनों में क्या हुआ था? एंटीजन वाज द पार्ट ऑफ योर बॉडी, बट दिस टाइम एंटीजन इज पार्ट ऑफ द बॉडी, एंटीजन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड।
आउटसाइड, तो आउटसाइड आ गए। जैसे कुछ ड्रग के रिएक्शंस होते आते हैं, रिएक्शंस का मकसद ये है कि ड्रग आपने कोई दे दी, अभी तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि ये ड्रग एंटीजन है, उसके अगेंस्ट अंदर एंटीबॉडी बैठी हुई है, दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया। वरना क्या होता है, नॉर्मली कोई एंटीजन दाखिल हुई, एंटीबॉडी ने दबोचा और बाद में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। भाई चोर आया, पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा और यहां से दफा हो गए, या घर पे बैठ गए मेरे अगले 6 महीने के लिए। अगर ये बैठ गए ऐसा, तो फिर ये हाइपर सेंसिटिविटी है। किस टाइप की? टाइप 3 एंटीबॉडी यूज हुई है। क्या के लिए यूज हुई है? कंप्लीमेंट के साथ कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स बना है। आप सिंपली देख लेंगे IgE एलर्जी वाला, दूसरा देखेंगे आपने कंप्लीमेंट, विदाउट कंप्लीमेंट, और तीसरा देखेंगे कॉम्प्लेक्स। पर कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से यहाँ पे हो गई। तो इसमें क्या बन जाते हैं? इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। और वो नोड्यूल जैसे डिजॉल्व ही नहीं होते हैं, घूमते रहते हैं, और वो जहाँ पकड़ लिया वहाँ बैठ जाते हैं, और बैठ जाते हैं तो फिर डैमेज होता ही रहता है, होता ही रहता है, और इस तरीके से मुसलसल होते रहते हैं। फिर ऐसी चीज़ों को फिर आप क्योर नहीं कर सकते। आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीज क्योर नहीं होती है मुसलसल, ये उसका मुस्तकिल इलाज चाहिए उनका। तो नॉर्मली एंटीजन एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? काम हो जाए, रिमूव हो जाए, बस खत्म। जिस जगह गंद हुआ है एंटीबॉडी पहुंच गई, अच्छी चीज़ है, पुलिस वाले आ गए, ये है कि जो चोर को पकड़ा और चल लेके थाने पे चले गए। ये थोड़ी नहीं कोई है थाने पे नहीं गए, वो दोनों ही जो है वो पुलिस वाले और चोर जो है ना वो सारे मेरे घर में 1 साल के रह रहे हैं। इससे अच्छा था कि चोर चोरी करके चला जाता। बल्कि आप चोर को कहते चोरी करो, जल्दी चले जाओ, पुलिस वाला आ रहा है। होता यही है कि हम पुलिस को फ़ोन करें कि जल्दी आओ, चोर बैठा हुआ है। अब मैं चोर को कह रहा हूँ जल्दी करो, जितनी चोरी करनी है करो, पुलिस वाला आ रहा है। तो डर रहे हैं आप किससे? एंटीबॉडी से, जो मेरे काम की चीज़ है। आजकल ये हो गया है, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल आपको पता है हर चीज़ एंटीबॉडी, ऑटो इम्यून हो गई है आजकल। हमारे ही जो पहरेदार हैं वो हमारे ही हाकिम बन गए हैं। हर जगह ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमारे मुल्क को भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, जिसकी कोई इलाज है ही नहीं। इसका एक ही इलाज है, रिमूव करो उसको। वो कह रहे हैं, किसी ने बोला था ना कि ये मुल्क बनेगा तब जब टूटेगा। होती है ना कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो इतनी बोसीदा हो जाती हैं कि अब उनकी रिपेयर नहीं हो सकती, उनको तोड़ के फिर उसी पे नई खड़ी कर देते हैं। जिन लोगों को पता है ना ये नेचर, जो नेचर के उसूल होते हैं, यही उसूल दुनिया में लागू होते हैं। आप पुरानी जगह को बार बार बना बना के उस पर तरमीमें करते करते अगर उसमें रहेंगे ना, ये आपके ऊपर आके गिरेगी, और इसमें इमारत तो जाएगी, उसमें बैठे हुए लोग भी मरेंगे। इसलिए बेहतर है कि उसके गिरने से पहले इन लोगों को सेफली कहीं शिफ्ट करो, इसको डिमॉलिश करो, और डिमॉलिश करके फिर नई खड़ी करके फिर इन्हीं को यहाँ पे बसा दो। अगर ये तरीका आता है तो ये सबसे सेफेस्ट है, लेकिन इसमें मेहनत है। या फिर इंतज़ार करो कि ये कब ऊपर आके गिरती है। गिरेगी तो ज़रूर, क्योंकि कुदरत के उसूल जो है हमेशा समझ लेना। नेचर जो है ना, नेचर बेरहम है। अगर चौथी मंजिल से एक काफिर और एक नबी दोनों छलांग लगाएंगे, दोनों मरेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि नेचर किसी को नहीं बख्शती जब तक कोई मौजज़ा न कर दे। मौजज़ा करे तो फिर तो अल्लाह के हाथ में, कुछ भी कर सकते। नेचर ऐसी चीज़ है, नेचर कभी नहीं बख्शती किसी को, इतनी बेरहम होती है नेचर। जब तबाही आती है ना, जल्जला आता है, तो फिर सिर्फ नेक लोग नहीं, सिर्फ बुरे लोग नहीं मरते, नेक लोग भी मर जाते, क्योंकि नेचर किसी को नहीं बख्शती। नेचुरल उसूल ऐसे होते हैं, नेचर में रहम नहीं होता है। इसलिए आप कभी ऐसा नहीं समझें कि जल्जले में वो गया मैं बच जाऊंगा, आप भी जाएंगे, भले आप कितनी भी नमाजें क्यों ना पढ़ रहे हों। क्योंकि जल्जले से बचने का जो तरीका है वो नमाज नहीं है, भागना है या खुद को। नेचर ने अकल दी है ना ऐसे। वो कहते हैं कि हमारे नबी करीम से किसी ने पूछा कि ऊँट को ऐसे छोड़ दूं अल्लाह के आसरे पे, या बांध के उसको फिर अल्लाह का आसरा करूं। बोला पहले बांधो, उसके बाद अल्लाह का आसरा करो। इसको छोड़ दोगे ऊँट को बगैर किसी बांध को ऐसे, तो ऊँट भाग जाएगा। फिर अल्लाह का कसूर नहीं है इसमें, उसने अकल भी तो दी है ना। तुम्हें ऊँट दिया है तो अकल भी दी है। ऊँट वो है, तुम ऊँट नहीं हो, वो ऊँट है। आपको अकल दी है, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, अकल दी है आपको। चलाओ इसको थोड़ा। तो ये था क्या? टाइप
3। इसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। और इसके साथ ये सब जितने भी देखे ना आपने, ये एंटीबॉडीज में, इसमें एंटीबॉडी इस्तेमाल हुई है। किसी में कॉम्प्लेक्सेस, किसी में अकेली एंटीबॉडीज रिसेप्टर की तरह यूज़ किया उनको आपने, किसी में कॉम्प्लीमेंट को बुला के टिश्यू को डैमेज किया तुम्हारा, किसी में IgE सेंसिटाइज थे जिसमें बेजोफिल्स को डैमेज किया और फिर हिस्टामिन रिलीज किया। ये सब एंटीबॉडीज मीडिएटेड थे। अब जो आ रहा है ना चौथा, वो टाइप 4 है। उसको हम कहते हैं डिलेड। ये डिलेड है, देर वाला जो है, देर से होता है, ये फौरन नहीं करता। ये हाइपर सेंसिटिविटी क्विक नहीं है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4। और ये जो टाइप 4 है, ये वो ह्यूमरल नहीं है, वो उसमें एंटीबॉडी इस्तेमाल नहीं होती। ये टिश्यू इम्यूनिटी है, इसमें टिश्यू इम्यूनिटी है, ये टिश्यू में होती है। कौन इस्तेमाल होता है इसमें? बॉडी आई, कोई एंटीजन आया टिश्यू में, कोई बैक्टीरिया वगैरह, पहला काम तो ये होगा कि वो उस जगह पर जो चौकीदार बैठा होगा, कौन चौकीदार? मैक्रोफेजेस। जैसे लंग में टीबी का बेसिला आया, दूसरे से लगा आपको, एरोसोल्स के जरिए अंदर गया, टिश्यू में फंस गया। कहाँ? लंग में। ब्रोंकाइटिस होते हुए कहाँ आ जाएगा? लंग में, लंग के टिश्यू में आ गया। ठीक है, तो ये लंग में आ गया। अब लंग में जैसे ये बैक्टीरिया आ गया, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाहिर है एंटीजन होगी, उसकी वाल होगी, उसके अंदर एंटीजन होगा जो आपके लिए खतरनाक है। अब ऐसे ही है, या ये उमूमन जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का, ट्यूबरकुल का जो टीबी का बेसिलस होता है, उसका असल जो ठिकाना है ना, वो अपेक्स होता है, लंग का अपेक्स। वजह? क्योंकि ये उस माहौल में ग्रो करता है जिस माहौल में ह्यूज ऑक्सीजन होती है। और जब आप ऑक्सीजन लेते हो, अंदर एयर लेते हो, तो एयर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नीचे के एरिया में कि ऊपर के एरिया में? क्योंकि एयर लाइट होती है तो वो कहाँ बैठने की कोशिश ज़्यादा करती है? अपर। इसलिए इसके लिए बेस्ट जो पॉसिबल जगह है वो क्या है? अपेक्स है, अपर लोब है। और जब भी आप एक्सरे देखें, पहले अपर लोब को देखा कीजिए कि वहाँ तो नहीं कोई गड़बड़ चल रही है। तो ये जब गड़बड़ होगी ज़्यादातर अपर लोब वाली, वो मोस्टली ये टीबी होगी। और ज़ाहिर है क्लिनिकली भी जज करेंगे, सिर्फ एक्सरे ही नहीं देखते। तो ये यहाँ पर है, चलो ये यहाँ आ गया है। स्टार्ट में क्या होगा? स्टार्ट में ये होगा कि इसके अराउंड जो मौजूद होंगे ना, ये जो उसके अपने चौकीदार जो होंगे, वहाँ के रहने वाले सेल्स, जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, एल्वुला में मैक्रोफेजेस बैठे हुए थे, उनको कहते हैं एल्वुलर मैक्रोफेजेस। ये क्या करेंगे? इसको एनगल्फ करें। मैक्रोफेजेस हैं, फेजेस माने फेगिया, तो उसको एनगल्फ करने की कोशिश करेंगे। यार एक तो नहीं होगा, बेशुमार होते हैं, लेकिन उसको डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसी लिपिड की लेयर बनी हुई होती है जिसमें फैटी एसिड, हाई लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। तो मैक्रोफेजेस उसको दबोच तो लेंगे अंदर, लेकिन डैमेज नहीं कर पाते हैं। फिर क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, फिर चीखना शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं? ये मैक्रोफेजेस यहाँ से सीक्रेशन बाहर निकालते हैं, केमिकल मीडिएटर्स। और वो केमिकल मीडिएटर्स क्या होते हैं? ये साइटोकाइंस होते हैं जो इनवाइट करते हैं दूसरे सेलों को। कौन से दूसरे सेल? अब मैक्रोफेजेस नहीं, उनको अपनी औकात का पता चल गया है कि हम उनको कुछ नहीं कर सकते। फिर ये क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स को बुला लेते हैं, और वो लिम्फोसाइट्स इनके अराउंड कॉलर बना देते हैं, और लिम्फोसाइट से निकलती है लिम्फोकाइंस वगैरह, ताकि इनको डैमेज किया जा सके। बट डैमेज तो क्या करना है? ये बस इसके अराउंड एक जंग का मैदान सा बस सज जाता है, और बीच में दबा हुआ है कौन? वो बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया भी क्या इस जंग के मैदान में क्या ऐसा ही है कि लंग डैमेज होता है? तो ये आपको एक फोकस सा मिल जाता है। ये नेक्रोसिस हो जाती है, लास्ट टाइम बताया था, कैजियस नेक्रोसिस, याद करें। ये बीच का एरिया क्या हो जाता है? नेक्रोटिक। क्यों? जंग का मैदान है, उस फील्ड का वो लंग का टुकड़ा नेक्रोटिक हो गया। कैसा नेक्रोसिस? चीजी टाइप, आयली टाइप। क्यों आयली?
क्योंकि वो जो ऊपर जो आपका देखा था ना आपने माइकोबैक्टीरियम, उसके ऊपर जो वाल चढ़ी हुई थी वो फैटी एसिड की थी, माइकोलिक एसिड की, इसलिए तो नाम है उसका माइकोबैक्टीरियम। ये माइकोलिक एसिड चढ़ा हुआ होता है उसको, तो ये इस तरीके से डैमेज करता है इस किस्म की इम्यूनिटी। अब ये यहाँ पड़ा हुआ है ना अगर, तो शुरुआत में ये यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये जो लिम्फोसाइट्स वगैरह टी वाले आए थे, क्या ये इस बैक्टीरिया को जानते थे? क्या वो सेंसिटाइज थे कि वो सेंसिटाइज नहीं थे? उनको मैक्रोफेजेस ने बुलाया है, उनको मैक्रोफेज, ये तो पहली दफा इंटर हुआ है, इसको तो कोई जानता ही नहीं है। तो स्टार्ट में ऐसी टीबी को कहते हैं प्राइमरी टीबी। इस वक्त भी 90% लोग या 80% लोग ऐसे होते हैं जिनमें इस किस्म की टीबी मौजूद होती है, और जब तक तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ये यहां पर दबा हुआ पड़ा रहेगा। ये खास तौर पे कहां, लिम्फ नोड वगैरह में इधर ये पड़ा रहेगा, और कभी आपको ये फ्लरिश करके डिजीज नहीं कराएगा। इसको प्राइमरी टीबी कहते हैं। मैंने अक्सर इससे देखा, आपका लिम्फ नोड इलाज है, कोई मसला नहीं है, आप सारी ज़िंदगी 100 साल भी जिंदा रहेंगे ना, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये वहीं दबा रहेगा, कभी डिजीज़ नहीं करेगा। लेकिन डिजीज़ तो नहीं करेगा, लेकिन अगर दोबारा कोई आ गया और बैक्टीरिया का डोज आ गया, तो अब की बार ये ऐसे ही बैठे हुए हैं कि ये टी लिम्फोसाइट सेंसिटाइज्ड हैं, पहले नहीं थे, अब ये क्या हैं, सेंसिटाइज्ड हैं। अगर ये अंदर आ गया तो ये क्या ऐसे बैठे रहेंगे कि जो अब अंदर दूसरा डोज आ गया है उसको दबोच लेंगे और एकदम से फाइटिंग शुरू हो जाएगी। ये सेकेंडरी टीबी है, और ये सेकेंडरी टीबी है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी है। अब क्या है इसके अंदर, ये आपका पूरा लंग डैमेज कर देंगे, और ये आस्ते आस्ते डैमेज करते करते स्लोली आप तक सारा आपका लंग, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं की इस बैक्टीरिया को, तुम्हारी इम्यूनिटी ने ख़त्म नहीं किया है, अब इसको ख़त्म करने के लिए तुम्हें बाहर से ड्रग्स लेनी पड़ेंगी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, वरना इसको छोड़ दोगे, आप बोले मेरी इम्यूनिटी है अंदर उसको कर लेगी। ये इम्यूनिटी है या हाइपर सेंसिटिविटी है, ये तुम्हारे लंग को उड़ा देगी पूरा। और टीबी की किसी ज़माने में दवाइयाँ ही नहीं होती थी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी तो बाद में ईजाद हुई है। हमारा खुद फाउंडर जो है वो ही डाइड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, देयर वाज नो ट्रीटमेंट। कायद आज़म को ट्यूबरकुलोसिस था इवन बिफोर पाकिस्तान वाज फाउंडेड। उसके जो पाकिस्तान की जो 45-46 के बाद उसके आप देखें ना, उसका जो फिजिशियन है, उसकी जो बाद में ऑटोबायोग्राफी आई है, तो कायद आज़म ने उसको मना कर दिया था, मेरी कौम को नहीं बताओगे मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, वरना वो हिम्मत तोड़ देंगे वो। तो पाकिस्तान की जो मूवमेंट चल रही थी, तो ही वाज एक्चुअली हैविंग ए ट्यूबरकुलोसिस, और उसके बाद तो मेरा ख्याल 11-12 महीने से जिंदा रहा है कायद आज़म। तो यहाँ पर हम देखें कि इसको, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी है, आप अपनी इम्यूनिटी के सहारे नहीं छोड़ सकते इसको, ये लंग ही उड़ा देगा। ये हम क्या करेंगे, बाहर से दवाई देंगे ताकि इस बैक्टीरिया को डैमेज किया जा सकते और मेरी जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस किया जाए। भाई जाओ, मैं इसको मारने के लिए बाहर से दवाई भेजता हूँ, आप ना करो उसको कुछ, क्योंकि आप जो कर रहे हो तो ये मर भी नहीं रहा है, उल्टा मेरा लंग खत्म हो रहा है। तो इसका मकसद ये है कि इट्स ए इम्यूनिटी। क्या इसमें एंटीबॉडी इस्तेमाल हुई है कि टी लिम्फोसाइट्स इस्तेमाल हुए हैं? ये इधर टिश्यू में गड़बड़ चल रही है। ये इस किस्म की टिश्यू इम्यूनिटी को हम टाइप 4 इम्यूनिटी भी कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडी इस्तेमाल नहीं हुई है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स इस्तेमाल हुए हैं। ये टाइप 4 लिम्फोसाइट, ये टाइप 4 इम्यूनिटी है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये 4 किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी है जो आपको यहाँ करनी है, और हर एक का एग्जाम्पल आपको समझना है, इसको समझना है, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है उसको। तो टाइप 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, और हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है? ये होती इम्यूनिटी ही है, लेकिन वो एडवर्स रिएक्शन है, ये एक्जिजरेटेड रिस्पॉन्स है, या एक एबनॉर्मल सा रिस्पॉन्स है जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। पुलिस वाला आया, चोर को पकड़ा, वेरी नाइस, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मेरे घर में बैठ गया, दिस इज बैड। रिसेप्टर होते हैं, TSH एक्ट करता है, T3 T4 बनता है, वेरी नाइस, अचानक एंटीबॉडी क्रिएट हो गई, उसने उसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके 10 गुना ज्यादा T3 T4 दे दिया, दिस इज बैड। एक डस्ट पार्टिकल आता है, अंदर चला जाता है, ठीक है, थोड़े बहुत हो जाए, मुझे कोई सिम्टम नहीं होता, डस्ट पार्टिकल अंदर आ गए, मेरा मुंह सूज गया, मेरा दम घुट रहा है, दिस इज नाइस, दिस इज द बैड थिंग। इसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। है तो इम्यूनिटी, बॉडी कहेगा यार मैं तो बचा रही हूं आपकी, ये बचाना है क्या? चौकीदार जो है वो एकदम से फायरिंग शुरू कर दे, वो पता चला कि वो मालिक मर गया उधर, वो पठान आगे बोले मैं तो समझा चोर है, तुम तो समझा चोर है, लेकिन मालिक तो मर गया, ये क्या अच्छी बात की उसने? क्या ये बुरी चीज़ है? इतनी विजिलेंस भी नहीं चाहिए, कुछ अक्ल भी चाहिए। तो कहने का मकसद है कि ऐसी चीज़ें अंदर बॉडी में हो जाती हैं, तो इसको हम फिर इम्यूनिटी नहीं कहते, फिर इसका नाम डालते हैं
hypersensitivity. So this was your class today.